Your Holiness, colleagues and friends, Namaste, Tashi Delek. परम पावन I'm दलाई लामा Dr. जी, Anupam Sibal, नमस्कार Deputy टच President दिले। and Group Medical Director of the Apollo Hospitals Group and the President of the Global Association of Physicians of Indian Origin, GAPIO. To quote His Holiness, happiness is not something ready-made. तो It परम comes from पावन your जी, own actions. जो If you want खुशी है, others to be सुख है, happy, वो practice प्राकृतिक compassion. नहीं हो, प्राकृतिक तरीके If से you होती want to है, be एक happy, दूसरे से practice आती compassion. है। अगर आप Only the development खुद of खुद सुखी compassion चाहते हो and तब understanding भी for करुणा का others अभ्यास can bring करना us the चाहिए। tranquility तो and जैसा कि कोट happiness किया we all जाता है, seek. With the COVID-19 pandemic, तो our work days कोविड-19, are never ending. तो जो कि The कोविड pressure to के keep द्वारा ourselves updated with बहुत सारी more than समस्याएं हुई हैं। 165 scientific papers a day is intense. तो हर At the रोज़ loom of making 150 से difficult ज़्यादा medical decisions पेपर्स is जो a हैं, hard मेडिकल challenge. पेपर्स The लिखे healers जाते हैं। today themselves need healing and और the जो खुद wisdom to दूसरों handle को pressure. एक जो As we ठीक brace करते हैं, up for खुद उनको facing the ठीक challenges होने of की आवश्यकता COVID-19, है। we, वो भी तलाश रहे हैं perhaps कि इसको इस more महामारी से compassionate कैसे बचा जा than ever सके। before. The medical community across the globe has united against the SARS-CoV-2 virus, breaking geographical and time zone barriers. HAPI in the US, BAPIO in the UK, CAPI and SINS in Canada, तो IPO अलग in अलग Australia, संस्थाओं से and जो GAPIO जुड़े have हुए हैं, launched the Global Indian Physician तो जो COVID-19 गाफियो Collaborative. जिस संस्था है जो कि This ग्लोबल collaborative has एक brought together वैश्विक एक संस्था है जहाँ के 1.4 अलग अलग, million physicians of Indian जिसमें origin from 1.4 मिलियन 49 लोग जुड़े countries हुए on हैं one जो platform. ज़्यादातर भारतीय We would like मूल to के हैं। thank Your Holiness तो for परम पावन giving जी, us the मैं आपका opportunity धन्यवाद देना to चाहता हूँ receive your कि blessings आपने as we हमें draw अवसर दिया on है। all resources to continue our war against COVID-19. तो Thank you. जिसको Thank you. कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए किस प्रकार से बचा जा सके। Good morning, His Holiness. I'm Dr. Akshay Anand. तो I'm a professor and editor of मैं Integrative अक्षय Medicine Case आनंद Reports हूँ, प्रोफेसर published हैं। at PGI Chandigarh. तो पीजीआई On चंडीगढ़ में behalf हैं। of Yoga Scholars PGI MER and तो India Yoga Association Chandigarh, तो योगा I welcome इंडिया you to एसोसिएशन join our efforts चंडीगढ़, तो मैं आपको the इसमें एक rolling प्रकार से out of सम्मिलित होना the चाहता हूँ, evidence-based सम्मिलित हो रहा हूँ। integrative approach in healthcare, और ख़ास so that करके कि the हेल्थ केयर mental में and the किस प्रकार spiritual से angle हम लोग of सहयोग कर healthcare सकें। providers, to which और Dr. इसके Anupam साथ alluded साथ to right now, who are under stress, as well as the हेल्थ patients, के साथ are साथ मानसिक catered सुख to by भी the प्राप्त हो। mental and the spiritual healing also, as is also brought out by the WHO document for holistic or the One Health program, as well as the Indian ancient text Ayurveda. तो Speaking about जैसे कि this आयुर्वेद जो pandemic, हैं उसमें भी बीमारियों के बारे में on the और travel. धैर्य के बारे में We और have किस been प्रकार से carrying उसका out उपयोग करना continuous चाहिए व्याख्या educational की गई है। series at our Facebook, तो हम लोग bringing अपने all the फेसबुक के disciplines of माध्यम से भी molecular समय समय biology, पर yoga, medicine इसका together एक प्रकार से and trying व्याख्यान to देते engage रहते हैं, people बताते in रहते research हैं। efforts. You always mention analyze. तो आप So we परम are पावन trying जी, to अक्सर आप यही teach कहते people हैं how कि to परीक्षण do करना research, चाहिए, जांच करना people from चाहिए। yoga तो and लोगों को Ayush हम लोग भी कोशिश and करते हैं कि provide them आयोग research और designs, योगा और आयुष के models, माध्यम से किस प्रकार से statistical tools, सीखा जा so that सकता है, किस research प्रकार is से not इन limited चीज़ों से बचा and जा this सकता है। evidence is used to roll out the integrative health agenda, which is more holistic for both the providers तो जो as कि well as the patient. We जो also चाहे feel, जो His डॉक्टर्स Holiness, हों चाहे मरीज that हों, the तो हम लोग compassion अलग अलग may तरीके से not be complete जो कि until व्यवस्था करते compassionate हैं। medical practice may तो not be जो complete करुणा until है, तो we खासकर are able करुणा जो to चिकित्सा integrate it क्षेत्र with the में other जो pathies such चिकित्सा as के डॉक्टर्स हैं, Ayurveda, जो Siddha, चिकित्सीय yoga, पेशा है, meditation. उसमें किस We have प्रकार से been लाभ हो सके। continuously तो हम लोग भी educating योगा, everybody about the मेडिटेशन, scientific aspect तो and इसको the भी एक evidence. वैज्ञानिक दृष्टिकोण से So I'm भी लोगों joined को today, His बताते हैं। Holiness, by तो a परम पावन जी, आज global मैं expert group from public health, तो इसमें molecular जो बहुत biology, जो एक्सपर्ट हैं, Ayurveda, अलग अलग क्षेत्रों के medicine, डॉक्टर्स हैं, neuroscience, उनके साथ में यहाँ psychology, पर जुड़ा हूँ। from countries as diverse as New तो Zealand, केवल इस भारत Brazil, देश के ही नहीं, USA, तो अलग अलग and देश में other रहने वाले global भी जो institutions. डॉक्टर्स हैं और These भारत have के come अलग अलग जो together इंस्टीट्यूट्स and हैं, inspired संस्थान by हैं, Dr. वो भी Elizabeth लोग Pettus, जुड़े who is हैं। a Nobel laureate, also with us to have तो a एक है dialogue with you and to learn the value चिकित्सा of क्षेत्र में compassion नोबेल and पुरस्कार if possible to विजेता भी generate हमारे साथ evidence में जुड़ेंगे। of what compassion
does to our तो health. इसमें यही है कि जो करुणा है किस प्रकार से हमारे हेल्थ के लिए लाभदायक होती है। Integrative health in all the hospitals that have physicians, which have Ayurveda acharyas, तो जो भी डॉक्टर्स होते हैं, जो योगाचार्य होते हैं, टीचर्स होते हैं, ध्यान भी करते हैं, दूसरों को भी सिखाते हैं। His Holiness, as a biological link between तो हम लोग भी परम eyesight, पावन जी के हम अपने जीवन को किस प्रकार से bringing the जोड़ करके biologists देख to सकें। come out of their labs and to put out this data to everybody in the public for healthcare. तो इसके साथ साथ जो पब्लिक के साथ भी जुड़ सके, उनको भी लाभ हो सके। तो इसलिए एप्पल जो यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया, विक्रम पटेल, सतवीर खारसा, जीवा खान सिंगापुर से, डॉक्टर रानिल श्रीलंका से, अनीता जैन ब्रिटिश मेडिकल से। तो अलग अलग बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, और एम्स से भी डॉक्टर्स हैं, निम्स बेंगलोर से, हार्वर्ड तो बाला जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी हैं, वो भी सभी आपके साथ आए हुए हैं और बातचीत करने के लिए आए हुए हैं। help of all the patients out there. I will like to welcome you to this. तो परम पावन जी इस संवाद के लिए आपका मैं स्वागत करता हूँ, In medical practice और चिकित्सीय पेशे में किस प्रकार से ये करना कैसे हो सकते हैं। तो पतंजलि सूत्र में कहा जाता है calm down कि to undertake जो चित्त को शुद्ध करने की आवश्यकता रहती है, तो योग के माध्यम से भी, आयुर्वेद के माध्यम से भी संभव है। खड़े Indeed, I feel great honor, you see, discussing with scholars. तो ये आप विद्वानों के साथ चर्चा करने का अवसर जो मिल रहा है, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो इस प्रकार के जो संवाद होते हैं, जो वार्तालाप होते हैं, उनसे भी मुझे सीखने का अवसर प्राप्त होता है। काफ़ी मैं इनसे भी सीखता हूँ। As the scholar, तो एक तिब्बती, at least a few centuries ago, तो विद्वान ने कहा है, कुछ शताब्दियों पहले के एक जो तिब्बती स्कॉलर्स ने कहा है, विद्वान ने कहा है कि उन्होंने कहा है कि जब तक हम बुद्ध नहीं बन जाते हैं, तब तक हम स्टूडेंट ही रहते हैं, छात्री रहते हैं, एक विद्यार्थी ही रहते हैं, और सीखने की कला रहती है। तो मैं इन बातों को मानता हूँ, विश्वास भी करता हूँ। तो आज के समय में जहाँ तक this स्वास्थ्य के बारे में अगर बात करें, the body element तो हमारे शरीर के जो तत्व हैं जिनसे ये हमारा शरीर बनता है, उसके साथ साथ जो हमारे भावनात्मक तत्व, जो हमारे मानसिक तत्व, जिनसे ये हमारे जो चित्त और मन बनते हैं, तो इसलिए हम अपने चित्त के लिए या भावनाओं के लिए physical और इस शरीर के लिए दोनों प्रकार से एक स्वास्थ्य की आवश्यकता रहती है, स्वस्थ होने की आवश्यकता है। as you mentioned, compassion तो जहाँ तक मानसिक स्तर पर तौर पर देखें तो करुणा और परहित, तो ये दोनों को करने से, अभ्यास करने से आंतरिक सुख की प्राप्ति होती है। peace of mind. तो इससे मन की शांति मिलती है। Even you see some trouble, तो हालांकि कुछ आपको समस्याएं भी हों, कुछ आपकी निंदा भी कर रहे हों, as our teacher, तो उनको आप एक शिक्षक के रूप में समझिए, अपने टीचर के रूप में समझना चाहिए। तो उनके प्रति भी आपकी एक अच्छी भावना होनी चाहिए। like that. तो उनके प्रति क्रोध नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। The compassion is best sort of also the countermeasure for anxiety. तो जो करुणा है, तो हमारे क्रोध और ईर्ष्या आदि की जो नकारात्मक विचार हैं, उसके एक प्रतिरोधी होते हैं। और इसके साथ साथ जो योगा का जो अभ्यास है,
breathing control. तो जैसे कि सांस को देखना, Like that. तो इसमें भी देखा जाता है। So that is your sort of heart beating. तो जैसे कि आपका जो दिल का धड़कना भी वो प्राकृतिक रूप से जो स्वतः जो चलता है। अगर आप योग भी का अभ्यास करते हैं तो जिसका दिल तेज़ी से धड़कता है या फिर ज़्यादा जो परेशानी होती है तो वो भी नॉर्मल हो जाता है। तो योगा की जो सामान्य कुछ विधियां हैं वे उनको मैं करता हूं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, परम पावन जी करके दिखा रहे हैं। तो मैं जो सामान्य जैसे अनुलोम विलोम हुआ, तो अनुलोम विलोम का अभ्यास है वो भी मैं करता हूं। Like that. Oh, you know, when you gain more experience, फिर जब आप योग करते समय जितना ज़्यादा आप अनुभव को प्राप्त कर लेते हैं, फिर सांस को ले सकते हैं, थोड़ा रोक सकते हैं, उसके बाद सांस को छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से period, जो सांस जो अभ्यास करने का एक जो समय है, आप धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं, बढ़ा लेते हैं। so that breathing control. तो इसको एक कहा जाए कि अपनी सांस को देखना आना या फिर आनापानसति या फिर अनुलोम विलोम भी का अभ्यास है वो कर सकते हैं। Also the anxiety, तो जो लोग जिनके अंदर बहुत ज़्यादा heart beating, एंजाइटी परेशानी रहती है, जिनका इस वजह से क्रोध की वजह से उनका जो हृदय की गति है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उनको भी लाभ होता है। Indian traditional तो ये जो विद्याएं हैं वो भारत की प्राचीन विद्या जो कुछ धर्म के ग्रंथ हैं उनसे ये चीज़ें ली गई हैं। we can consider तो इनको भले ही ली गई हों लेकिन फिर भी इनको एक अपने जो एकेडमिक सब्जेक्ट के विषय के रूप में लेना चाहिए। तो इनको धार्मिक अभ्यास के रूप में नहीं समझना चाहिए। तो योग को और इन चीज़ों को पूर्व जन्म के लिए, अच्छे जीवन के लिए या मोक्ष प्राप्त करने, निर्वाण प्राप्त करने के रूप में नहीं लेना चाहिए। तो ये देखने की ज़रूरत रहती है कि हम किस प्रकार से अपने स्वस्थ जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। और ये हमेशा ये हमारे जो एक प्रकार से मन में विचलन है, एंजाइटी इत्यादि होती है, उसको कम करने में लाभ होते हैं। few decades I have serious discussion तो पिछले कुछ दशकों से मैं वैज्ञानिक लोगों के साथ गंभीर तरीके से चर्चा करते आया हूँ। West, और ख़ास करके जो जिनसे मैंने चर्चा की वो ज़्यादातर पाश्चात्य देशों के हैं। their background, तो उनकी कला संस्कृति भी पाश्चात्य शैली की है। materialistic sort of तो उनका जीवन भी पूरा जीवन भौतिक वस्तुओं, भौतिक विकास से जुड़ा है और उन्होंने उसी प्रकार की शिक्षा भी प्राप्त की है। So to them, the ancient Indian experience, Indian thought, mainly about mind, और ख़ास करके जो प्राचीन जो विद्या और हमारे चित्त के लिए, मन के लिए जो विद्याएं हैं, till recently, till the also the later the previous century, the 20th century, there is no idea about mind. तो वैज्ञानिक लोग भी हैं, वो 20वीं शताब्दी के अंत तक जो चित्त है, मन है, उसके बारे में ज़्यादा उनके पास कोई शोध नहीं मानते थे। फिर उसके बाद जैसे जैसे I think my own experience, कि मैंने अपने अनुभव के द्वारा उनके साथ जब बातचीत की they realize तब उन्होंने वाकई इस चीज़ को माना कि education or their thinking more materialistic way. और उनका जो सोच विचार था वो ज़्यादातर भौतिक विकास पर आधारित था और वो भी मानते थे कि ज़्यादातर जो विज्ञान आज की है भौतिक Physical, विकास पर आधारित है। emotion. तो मैं ये शब्द यूज करता हूँ कि जो हमारे एक प्रकार से जो शरीर को चलाने के लिए और दूसरा एक चित्त को, जो स्वस्थ जीवन और स्वस्थ चित्त, तो दोनों प्रकार से होना चाहिए। तो इस पर जो हमारे ज़्यादातर जो लोग हैं, वैज्ञानिक लोग भी ज़्यादातर स्वास्थ्य पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन
जो हमारे मानसिक विकारों के लिए या अपनी भावनाओं के लिए उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, mental level, क्योंकि मानसिक स्तर पर बहुत सारे हमारे डिस्टर्ब लोग होते हैं, परेशान होते हैं, healthy body. और स्वस्थ चित्त का होना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जितनी ज़्यादा आपके अंदर क्रोध होगा, घृणा होगी, उतना ज़्यादा Increase. उतना ही आपका जो And then रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर है, वो उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। और ज़्यादा आप चिंता करोगे तो उससे हार्ट अटैक होने की भी संभावना बढ़ती है। heighten of physical तो इसलिए मैं कहता हूँ कि emotion जो स्वस्थ शरीर के साथ साथ स्वस्थ मन भी होना चाहिए, चित्त भी होना चाहिए, दोनों ये साथ साथ चलते हैं। already sort of mentioned. तो जैसा कि आपने कहा है कि योग और ये जो बातें आपने कही हैं ये महत्वपूर्ण हैं, ये बहुत अच्छी हैं। I think then field of knowledge, no limitation. तो जहाँ तक सीखने का जो क्षेत्र है उसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो मॉडर्न आप जो आविष्कार हुए हैं, जो भी आपके पास सुविधाएं हैं, उनके साथ अपने ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। For health, as a matter of health, also you see combination, modern scientists, तो इसलिए अपने स्वास्थ्य के साथ साथ आधुनिक शिक्षा, आधुनिक विज्ञान और अपने जो भारत के जो प्राचीन विद्या है उनको साथ जोड़ना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कारगर हैं। practical level. Now today's world, तो अगर आप प्रैक्टिकल रूप पे देखें, इस दुनिया में सभी लोग सभी सुख चाहते हैं, विश्व जो सुखमय संसार चाहते हैं, दुनिया चाहते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारी समस्याएं भी हैं। creation, तो जो समस्याएं बहुत सारी ऐसी हैं जो हम लोगों ने खुद बनाई हैं, मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई समस्याएं भी हैं। which we are facing, और ऐसी समस्याएं जो बनाई गई हैं वो ज़्यादातर मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई समस्याएं हैं। तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जो समस्याएं हम लोगों ने खड़ी की हैं उनको कम कर सकें, क्योंकि ये हम लोगों के द्वारा निर्मित हैं, स्वयं निर्मित हैं, तो इनको कम करना चाहिए। so now I feel important is education, modern education, which mainly come from West. तो जो आधुनिक जो शिक्षा है वो पाश्चात्य से आई हुई है। These things only you see blessing from God. तो वो मानते हैं कि जो भी आशीर्वाद है वो ईश्वर या भगवान से उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है। In this country, in India, ahimsa तो भारत के जो अहिंसा रूपी सिद्धांत with karuna, और अहिंसा भी जो करुणा के साथ जुड़ा हुआ, तो जो व्यवस्था है भारत में कई हजार वर्ष पहले यहाँ पर व्यवस्था हो चुकी थी। तो अहिंसा का सिद्धांत और करुणा दोनों यहाँ पर थे। practice of shamatha, तो ये इनके साथ साथ समत और विपश्यना का अभ्यास, तो ये पिछले 3000 वर्षों से इस भारत देश में ये व्याप्त हैं। the mental peace, इसलिए मन की शांति के लिए emotion. और जो कि आपके भावनाओं पर आधारित होती है, I think very तो इसके लिए हमारे जो प्राचीन हजारों वर्ष प्राचीन जो सभ्यता है, जो ज्ञान है, उससे निश्चित रूप से लाभ होता है। dealing with emotion is very useful. तो मैं मानता हूँ कि ये जो विद्या है जो हमारे भावनाओं से जुड़ी हुई है, ये लाभदायक है। Expressing. In 20th century, Mahatma Gandhi ji, तो 20वीं शताब्दी में कि महात्मा गांधी old ahimsa, तो भारत की जो हजारों वर्ष प्राचीन जो विद्या अहिंसा, उन्होंने उसका अभ्यास किया और अपने जो राजनीतिक उपयोग के लिए अर्थात स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भी उसका उपयोग किया। struggle. तो उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि अहिंसा के द्वारा भी स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। उसके साथ साथ आप साउथ अफ्रीका को देखें, यूरोप, अमेरिका, बहुत सारे देश के लोग इससे अट्रैक्ट हुए हैं और बहुत सारे लोग उनके इस अहिंसा रूपी जो संघर्ष था उससे उनको लाभ हुआ।
जो जैसे कि बिशप टूटू को भी देख लें तो वो भी महात्मा गांधी के सिद्धांत या जो उनका अभ्यास था, Mandela, और उसके साथ साथ नेल्सन मंडेला, वो भी महात्मा गांधी ने जो, Martin Luther King, और मार्टिन लूथर किंग, तो उन्होंने भी उस चीज़ को अपनाया, अहिंसा के सिद्धांत का अपनाया। were impressed Mahatma Gandhi ji's, you see, non-violent struggle. तो जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने अहिंसा रूपी सिद्धांत अपना कर स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया, तो ये लोग भी उनकी प्रशंसा करते हैं। About how to तो अभी समय है कि जो भारतीय ज्ञान है इसके द्वारा किस प्रकार से हम अपने आंतरिक मूल्यों को बढ़ा सकते हैं, सुख को प्राप्त कर सकते हैं, practice of religion और करुणा के अभ्यास से हम किस प्रकार से सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो इनको कोई धार्मिक सब्जेक्ट न विषय न मान करके इनको एकेडमिक विषय में रखना चाहिए, प्रज्ञा के रूप में, academic, एक विद्या के रूप में मानना चाहिए, how to create mental peace. और किस प्रकार से हम मानसिक सुख को प्राप्त कर सकते हैं, So इसके तौर पर रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। sometimes I also have little sort of critical view during freedom fight. Mahatma Gandhi ji should pay तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी जो कि महात्मा गांधी के बारे में कहना चाहता हूँ, इसको एक you see accept the Western materialistic कि जो कि उन्होंने जब जो शिक्षा है उसको भी उन्होंने जो है ज़्यादातर पाश्चात्य शिक्षा को अपनाया, तो भारतीय शिक्षा पद्धति को अपनाना चाहिए था, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। freedom तो भारत जब स्वतंत्र हो गया था उसके बाद जो भारत की जो विद्या है, education जो शिक्षा है, वो ज़्यादातर भारतीय ही होना चाहिए, और आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जो प्राचीन विद्या को भी इनको भी किस प्रकार से साथ में जोड़ा जा सके, or education. और ये भी हमारे शिक्षा के एक पार्ट होना चाहिए, अंग के रूप में होना चाहिए। Now India, I think since India, I think many part of the world, I think really respect India. तो मैंने देखा है कि विश्व के बहुत सारे लोग भारत के जो संस्कृति, सभ्यता और उसका बहुत सारे लोग सम्मान करते हैं। So world तो इसलिए फिर भी इससे ज़्यादा अगर आप विश्व को दिखाना चाहते हैं और एक परिपूर्ण के क्षेत्र में एक शिक्षा के रूप में, जैसे आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की शिक्षा को अगर आप दिखाना चाहते हैं, education. तो इसको आपको अच्छी तरह से रख रखाव करना चाहिए, और भारत वास्तव में कर सकते हैं। Physics, जैसे कि क्वांटम फिजिक्स के उदाहरण देखिए, Indian friend, तो मेरे एक मित्र डॉक्टर राजा रमनन जो वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि क्वांटम फिजिक्स जो पाश्चात्य देशों में एक प्रकार से नई पद्धति है, और भारत में ये पिछले 5000 वर्षों से ये व्यवस्था थी, क्वांटम फिजिक्स की जो व्यवस्था यहाँ थी, तो ये सत्य बात है। so he recite few sentences of ancient Indian great scholar. तो उन्होंने कुछ नागार्जुन और अन्य विद्वानों के कुछ जो कोट थे, जो उनकी रचना थी, वो उन्होंने मुझे बताई। Buddha's time, I think his language, तो बुद्ध के समय, तो शायद भगवान बुद्ध के समय में जब वो जिस क्षेत्र में प्रवचन देते होंगे, तो उस समय की भाषा पाली रही थी। फिर उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय बना। education institution already there. I तो हालांकि मैंने ऐसा सुना है कि वहाँ पर छोटा संस्थान तो था, फिर वहाँ पर जा कर के लोगों ने जो बौद्ध धर्म के और अध्ययन करने लगे, फिर धीरे धीरे संस्कृत माध्यम से अध्ययन करना शुरू कर दिया। then you see the Nalanda tradition very much sort of investigation. तो नालंदा परंपरा जो है वो बहुत ज़्यादा न्याय और तर्क पर आधारित है। तो भगवान बुद्ध ने खुद कहा है कि हे मेरे अनुयायियों, भिक्षुओं और भिक्षुणियों, उपासक उपासिकाओं, तो मेरे शिक्षा को आपको श्रद्धावश स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, तो आपकी मेरी शिक्षा को, मेरे उपदेशों पर अच्छी तरह से परीक्षण करना चाहिए। Scholars,
तो इसलिए जो नालंदा के जो विद्वान थे, स्कॉलर्स थे, उन्होंने जो बौद्ध दर्शन थे उनका अच्छी तरह से परीक्षण किया, उनका अध्ययन किया। From Nalanda, तो बहुत सारे जो विद्वान नालंदा से निकले, said the Kasoda use, I mean, extremely investigate तो उन्होंने निरंतर उन्होंने जो भगवान बुद्ध के दर्शन थे, जो शिक्षाएं थी, परीक्षण किया। when we find some contradiction, तो जब कभी भी भगवान बुद्ध के कुछ वचनों में अगर विरोधाभास एहसास होता है, कभी लगता है, use the right to reject. तो उस समय उनके अपने एक अधिकार हैं कि भगवान बुद्ध के कुछ, मान लीजिए कहीं कुछ हो तो अपने हिसाब से या फिर उनके हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। The Pali tradition, Sanskrit tradition, तो पाली परंपरा और संस्कृत परंपरा, ये दो प्रकार की परंपराएं हैं। तो ये दोनों ही बहुत ही लाभदायक हैं, दोनों परंपराएं लाभदायक हैं। और खास करके संस्कृत परंपरा और पाली परंपरा देखें तो किसमें विश्वास या फिर श्रद्धा बस नहीं चलते हैं, उसमें परीक्षण करते हैं। तो मैं अपना उदाहरण दूं तो मैं पिछले कुछ दशकों से no problem. मैं Since we वैज्ञानिक लोगों के साथ चर्चा की तो उनके साथ मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि कोई श्रद्धा बस या चर्चा नहीं हुई, श्रद्धा बस श्रद्धा नहीं हुई। ये एक वार्तालाप हुआ। Huh? Now health, as I already mentioned, the peace of mind, तो जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, Kasoda, part of health work. तो जो हमारी मानसिक जो सुख है Oh, वो भी एक प्रकार से हमारे जो शारीरिक स्वास्थ्य है उससे जुड़ा हुआ होता है हमारे। particularly the doctors. तो खास करके जो डॉक्टर्स और नर्सेस हैं, I myself, so some experience, तो मुझे भी कुछ, visit medical checkup, तो मैं भी जब मेडिकल चेकअप के लिए जब हॉस्पिटल में जाता हूँ doctors, nurses, तो डॉक्टर और जो नर्स होते हैं human feeling, तो वो हमेशा एक मानवीय व्यवहार देते हैं, तो मुस्कुराते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत है। 1954, तो China, 1954 में जब मैं चीन में था doctor, तो doctor, एक चीनी डॉक्टर, बहुत अच्छे डॉक्टर थे। when I get some problem, तो मेरे कुछ समस्या हो गई थी, very serious. तो वो अच्छी तरह से बड़े एक सतर्क रह करके उन्होंने मेरा लेकिन वो मुस्कुरा बिल्कुल भी नहीं रहे थे, एक तरह से गंभीर मुद्रा में मेरा उपचार किया। Nurses, you see, with sort of तो जो डॉक्टर और जो नर्स हैं humans are also तो इनको एक मानवीय व्यवहार के साथ साथ मुस्कुराहट के साथ अपने मरीजों के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो इससे लोगों को वास्तव में एक सहूलियत मिलती है। the doctor with modern equipment तो कुछ डॉक्टर जो आधुनिक smile. जो औजार हैं उनका साथ उपयोग करते बिल्कुल भी मुस्कुराते नहीं है। Oh, there are तो मुझे कुछ कभी एक ऐसा लगता है, experiment on my body. तो मुझे लगता है कि ये मुस्कुरा नहीं रहे, इसका मतलब मेरे शरीर पे कोई परीक्षण कर रहे हैं इन औजारों के द्वारा, इन हथियारों के द्वारा। क्या कहते हैं, इनके जो औजार हैं। More sort of compassionate. तो इसलिए डॉक्टर का जो चेहरा है वो करुणामयी होना चाहिए, खुशहाल होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। Yes. Now question. तो अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Thank you, His Holiness, for very inspiring and very good talk, almost pushing us to explore educational research. तो आपने परम पावन जी बहुत अच्छे से व्याख्या की है, And modern medicine can तो result किस प्रकार से मॉडर्न आधुनिक शिक्षा और जो डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको, three questions from our organization, Yoga Scholars. तो हमारे 3 जो योगा स्कॉलर्स, जो इंडियन योगा एसोसिएशन है, उससे 3 क्वेश्चंस हैं। Before I ask my question, I would allow me to acknowledge the contribution of Dr. Elisa Apple, तो मैं डॉक्टर एलिसा एप्पल California, के बारे में बताना चाहूँगी। from Nangal. तो ईश्वर जो नंगल से हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, Fighting for prevention of disease in India.
The first question, His Holiness, is from our distinguished guest speaker, Dr. Elizabeth Blackburn. तो डॉक्टर एलिजाबेथ ब्लैकबर्न से की तरफ से क्वेश्चन है। तो जो 2009 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला USA, and now और after कैम्ब्रिज that, से she worked पढ़ाई at की। University of California, San Francisco. तो सैन She फ्रांसिस्को discovered the telomere and the telomerases. तो टेलोमेरेसिस उन्होंने उनकी जो खोज की और जो क्रोमोसोम के एक अंग होते हैं तो जो कि स्वास्थ्य और बीमारियों से संबंधित हो ये हैं। Discovery of telomerase is trying to investigate whether chronic stress तो इससे can have any implication जो कि क्रोनिक स्ट्रेस है तो इससे टेलोमेरेज पर कोई प्रभाव पड़ता है कि नहीं है और इसके जीवन की जो दीर्घायु है जो अवधि उस पर क्या compassion can elongate or change the structure or the activity of telomerases. तो जो टेलोमेरेसिस Represents the biological community by providing a उससे framework. जो वैज्ञानिक क्षेत्र में या करुणा पर उसका क्या लाभ हो सकता है। People like you, on the other hand, can bring out the benefits of biology for the good of patients and the physicians. I welcome Dr. Elizabeth Blackburn to please ask her question. Thank you. Hello, Your Holiness. My question for you is inspired by a question about my scientific research that तो मेरा you asked me. It was about 14 years ago in Mountain Menla, the Tibet House retreat in New York State. तो न्यूयॉर्क स्टेट में अब 14 वर्ष पहले जब बहुत सारे वैज्ञानिक लोग मिले थे तब ये क्वेश्चन किया गया था। Back then, when I described to you the तो उस समय मैंने साइंटिफिक स्टडी को आपको व्याख्या की थी जब आपने मुझसे प्रश्न पूछा था और उसके साथ साथ जो लंबे समय तक जिनके जो स्ट्रेस रहते हैं तो उनके बारे में क्वेश्चन किया था तो मैं उस प्रश्न को नहीं भूलती हूँ। about in people who have given up hope. तो आपने क्वेश्चन किया था कि जो लोग उम्मीद छोड़ देते हैं तो उनको क्या करना चाहिए। तो फिर उसके बाद तो हम लोगों ने साइंटिफिक रिसर्च के दौरान बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त किया। Do indeed have shorter telomeres, and that means they have premature body aging. In fact, it's this type of aging of their immune systems that can make them more vulnerable to viral infections, for example. And today we talked about the many troubles in the world. तो इसके साथ साथ वास्तव में जो आपने का जो क्वेश्चन था कि आज के समय में बहुत सारे लोग जो हैं कि हतोत्साहित हो जाते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप क्या एक सलाह देना चाहते हैं कि Given up hope. जिन्होंने अपनी उम्मीद छोड़ दी है तो उन लोगों को क्या करना चाहिए कि जिससे अपना जीवन जी सकें। Short-sighted तो मैं मानता हूँ desire. कि एक तो संकुचित विचारधारा, दूसरी बहुत ज़्यादा इच्छा और एक तरफा सोच या दृष्टिकोण ये नहीं होना चाहिए। Much possibility give up, तो इससे ज़्यादातर उम्मीद छोड़ देते हैं। losing hope. So now here, human mind, human brain have the ability तो जो मनुष्य की जो चित्त है, जो बुद्धि है, तो उसके अंदर एक क्षमता है कि संपूर्णता को देख सकता है, अलग अलग तरीक़ों से देख सकते हैं। तो जो आप संपूर्ण गैलेक्सी को देखें कि जो शुरुआत से ही अगर इसको देखें कि किस प्रकार से ये अस्तित्व में आई और एक भविष्य में ऐसा भी हो कि मान लीजिए कि गायब हो जाती है, being. Certainly, तो हम लोग भी मनुष्य जो हैं and then क्या मनुष्यों का भी कहीं शुरुआत होती है, फिर हम लोग रहेंगे, फिर समाप्त हो जाएंगे। ये एक प्रकृति है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। our lifetime, तो इसलिए अपने जीवन में जब रहते हैं our life, तो हम ये जो समस्याएं हैं वो हमारे जीवन के भाग हैं, we have this एक हिस्सा हैं। So basically, we have the ability to think, to find
to find ways and means to overcome this problem. तो इसलिए हमारे अंदर ये क्षमता है कि जो भी समस्याएं हैं उनसे हम मुक्त हो सकते हैं। Wider perspective. वो तभी संभव है कि अगर हम एक अच्छी तरह से बृहद सोच को रखें, एक खुली सोच रखें और दूसरों के हितकारी सोच रखें, तभी वो संभव हो सकता है। What's the that useful, you see, hopelessness, or just you see think. तो ये जो एक प्रकार से हतोत्साह जैसा या जिसको उम्मीद नहीं रहती है, वो वैसे लोग सोचते हैं जिनके सोच संकुचित होती है, विचारधारा संकुचित होती है। But if you have the more wider sort of, अगर आपकी जो सोच विचार हैं ज़्यादा खुले होते हैं then तो शायद there are some problems. ज़्यादा एक उम्मीद भी रहती है। There is possibility. हालांकि बहुत सारी समस्याएं हैं, तो समस्याएं हैं तो उनके निदान भी पा सकते हैं, आप उनसे छुटकारा भी पा सकते हैं। Human intelligence, human wisdom, तो इसलिए जो हमारी जो प्रज्ञा है, ज्ञान है, और वो भी शिक्षा के माध्यम से। modern education, तो जैसा कि मैंने पूर्व में कहा है कि जो आधुनिक जो ज्ञान है, जो शिक्षा है, वो ज़्यादातर भौतिक विकास पर आधारित है। about mind. और जो इसके साथ साथ जो भारतीय जो विद्या है, खास करके हमारे मन और चित्त के बारे में जो मनोविज्ञान है, उसको अगर आप जोड़ करके देखते हैं, उसका अगर अध्ययन करते हैं, इनको दोनों को साथ रखें, तो शायद उम्मीद को जो हतोत्साहित हो जाता है, जो उम्मीद छोड़ देता है, तो शायद वो न छोड़े, शायद उसके लाभदायक हो सकता है। उदाहरण के रूप में मेरे ज़िंदगी को देखिए 59, कि 1959 से very difficult. जो जितनी भी चीज़ें थीं, समस्याएं थीं, वो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से गंभीर समस्याएं बन गईं। So, actually in 1959, और 1959 में uh, 17th, 17 मार्च को then I left. तो मैंने अपना देश छोड़ा, अपना जो जगह नोरबलिंका छोड़ा, जो मेरा ग्रीष्मकालीन महल हुआ करता था। तो समय मुझे संदेह था कि अगली सुबह मैं देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा। ये संदेह लेकर के हमने अपना महल छोड़ दिया, अपना निवास छोड़ा, क्योंकि ऐसी समस्याएं बन गई थीं। I never sort of give up. लेकिन कभी भी मैंने अपनी उम्मीद को नहीं There may छोड़ा। be some difficulties, but we must try. तो माना कि हाँ, मानता हूँ कि कुछ कठिनाई हैं, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए, दृढ़ निश्चय रखना चाहिए। तो दृढ़ निश्चय रख कर के ही 17th, मैंने उनका सामना किया। 59 तो 15 मार्च 1959, morning, माफ़ करना 18 की, great relief. तो सुबह मुझे थोड़ा सा एक प्रकार से प्रसन्नता हुई, खुशी हुई कि मेरे जीवन में अब कोई खतरा नहीं है, कि मैं दक्षिणी तिब्बत में पहुंच गया हूं। Something fresh. देखा कि हर तरह तरोताज़ा है, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा परेशानी नहीं है। Serious sort of situation, difficult situation तो ऐसी जब गंभीर समस्या जब थी, of my own life. तो मेरे जीवन को खतरा था। तो लेकिन फिर मेरे जीवन को खतरा था, फिर भी मैंने अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ा, और फिर मैं बच गया, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। Thank you so much. Thank you. The next question, His Holiness, is from Professor Valerie, तो अगला क्वेश्चन डॉक्टर वैलेरी फेगन से है, जो एडिटर इन चीफ, New Zealand. जो न्यूजीलैंड में न्यूरो एपिडेमियोलॉजी के Valerie, can you रिसर्च हैं। तो इनका प्रश्न है Thank you. Your Holiness, कि परम पावन जी, growing body of evidence demonstrating direct links between open animal market तो जहाँ तक ओपन मार्केट, farming जो मार्केट है इंडस्ट्रियल फार्मिंग, उनको आपने देखा होगा कि इंक्लूडिंग जो कोविड है और बहुत सारी जो समस्याएं हैं, दर्द हैं, तो आपका ऐसे जो विधि विधान है, गवर्नेंस, उसके लिए आपकी क्या राय है? Judge our teeth. तो उदाहरण के रूप में अगर आप अपने दांतों को अगर देखें, तो बनावट देखें, अपने दांतों की बनावट देखें, नाखून की बनावट देखें, More equipped तो हमारा vegetarian. जो जीवन है वो ज़्यादा
जो शाकाहार पर आधारित है उनकी तरफ दिखाता है। और आप जानवरों को देखें जिनके जो जो चीते हैं, भालू हैं, तो उनके दांतों को आप बनावट देखिए तो उनके दांतों देखिए एक तरह से नुकीले होते हैं, नाखून जो है नुकीले होते हैं। तो उनके हिसाब से उनके ये some other vegetarian animal. और वो दूसरे जानवर जैसे कि हिरन हुआ, गाय भैंस इत्यादि, तो उनके दांत को भी देखिए, नाखूनों को देखिए। उनके नाखून और दांत चीतों की तरह, घोड़ों और शेरों की तरह से नहीं होते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि To the vegetarian, तो हम लोग जो है कि ज़्यादातर जो शाकाहारी जीव होते हैं उसके श्रेणी में आते हैं। desire, लेकिन हमारी बहुत ज़्यादा इच्छा होने की वजह से, बहुत ज़्यादा लालसा होने की वजह से, I think in Tibet, like Tibet, in northern Tibet, no vegetable. तो नॉर्थ तिब्बत में, उत्तरी तिब्बत में अगर देखें तो वहाँ ज़्यादा सब्जियाँ नहीं होती हैं, ना तो कोई फल होते हैं। Also, you see, और जो जौ और गेहूँ वो भी बहुत मुश्किल से वहाँ पर पैदा होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो कि चरावाहे लोग रहते हैं, depend on animal. तो ज़्यादातर वो अपने Milk, जानवरों पर आधारित, उनकी मीट हो, मांस हुआ, उनका दूध हुआ, तो उस पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। belongs, as I mentioned earlier. तो जैसा कि सामान्य तौर पर देखा जाए तो हम लोग एक शाकाहारी हैं। उस The vegetarian, they are तो अभी आप देखें कि भारत का जो भारतीय लोग हैं वो ज़्यादातर वो शाकाहारी हैं। और भारतीय भोजन, जो शाकाहारी भोजन, बहुत अच्छा भोजन होता है। pay more attention तो इसलिए हमें about, you see, a non-vegetarian. तो ज़्यादातर जो हमारे जो शाकाहारी बनने पर जोर देना चाहिए। People, तो भारत के करोड़ों लोग जो हैं शाकाहारी हैं। the poultry, almost तो जब मैं पहली बार जब यहाँ आया था तो इतनी ज़्यादा मुर्गी पालन नहीं होते थे। तो कुछ जो परिवार हैं वो मुर्गी वगैरह रखते थे, लेकिन कोई मुर्गी पालन या जो आप देखते हैं दुकानें देखते हैं or poultry. Now gradually, in the name of पोल्ट्री इत्यादि नहीं होते थे, लेकिन विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर बहुत ज़्यादा जो कि मुर्गी पालन या फिर बूचड़ खाने आपको देखने को मिलते हैं। and those country तो कम से कम भारत में तो ये व्यवस्था है ही है, शाकाहार की व्यवस्था तो है। तो उसके साथ साथ भी अन्य देशों में है और लोगों को भी इसके प्रति ध्यान देना चाहिए। pay more attention, spend more money for making poultry. तो लोग कोशिश करना चाहिए कि पैसे कमाने के लिए जो मुर्गी पालन या फिर जो मुर्गी पालन हुआ या जानवरों का जो पालन हुआ, खास करके जो मीट का उपयोग करते हैं, तो इनके लिए ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। कोशिश हो सके तो इससे बचना चाहिए, क्योंकि हम जो मनुष्य हैं तो शारीरिक रूप से देखें तो शाकाहार पर निर्भर हैं। Make more effort for तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो शाकाहारी बने, फलों का उत्पाद करें, सब्जियों का उत्पाद करें। some sort of connection. तो इसका जो संबंध है वो पर्यावरण से प्रत्यक्ष रूप से इसका संबंध होता है, डायरेक्ट संबंध है। Beef farm, जैसे कि आप बीफ को देख लें या फिर ecology, जो कि गाय या भैंस, इनके अगर आप देखें, इनके जो लोग पालन करते हैं तो ये भी पर्यावरण के हिसाब से भी नुकसानदायक होते हैं। then some difficult thing is fish. तो उसके साथ अलावा दूसरी बात जो मछली पालन है, Those sort of concerned people seems to say no feeling. तो मछलियों के प्रति लोगों की ज़्यादा एक भावना नहीं होती है। बहुत कोई एक प्रकार से तो उनको दर्द हो रहा होगा, दुख होगा, ऐसे लोगों के विचार में भी नहीं आता है, मन में भी नहीं आता है। तो ऐसी तो उनको एक मछलियों को भी एक सब्जी की तरह लोग मान लेते हैं कि जैसे जो हम लोग सब्जी आमतौर पर खाते हैं, तो उनके प्रति भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो कुछ क्षेत्रों के लोग तो पूरा जीवन ही मछली पालन में गुजार देते हैं। In Tibet, तो तिब्बत की मैं एक कहानी बताना चाहूँगा। Yamrotho, तो यामड्रुत्सो some family जो वहाँ की एक तालाब है या फिर बड़ी एक झील है, तो उसके आसपास रहने वाला पूरा जो परिवार है, तो उनका
पूरा जीवन, पूरे परिवार का जीवन इन मछली पालन पर था। one great practitioner, yogi, he और एक बहुत ही बड़े साधक या योगी, तो उन्होंने कहा, उम्मीद ऐसी प्रार्थना की कि आगे कोई मछली पैदा ना हो, तो नाग लोगों के साथ उन्होंने कुछ प्रार्थनाएं की, spiritual कुछ आध्यात्मिक तरीके से ऐसे उन्होंने अभ्यास किया। control lake तो जो कि जो सो तालाब को या फिर झील को रख रखाव कर रहे थे, you should not make more fish. तो ऐसा कहा कि यहाँ पर एक कहानी है कि और मछली यहाँ पैदा ना हो। फिर मछलियों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। Whose whole life तो is फिर जिन परिवारों की ज़िंदगी, starvation. परिवार का जो जीवन पालन उसी पर गुजरता था, मछली पालन पर गुजरता था, तो वो भुखमरी में जीने लगा। तो फिर आकर के योगी से Human life more important. आकर के उन्होंने एक प्रकार से He allowed उनसे कहा कि मनुष्य का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है या मछली का, livelihood तो मनुष्य का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। should be exception. तो फिर उन्होंने योगी ने कहा कि अगर तुम्हारा जीवन इसी पर निर्भर है, दूसरा कुछ तुम्हारे पास व्यवस्था नहीं है, तो फिर आपके पास दूसरा रास्ता नहीं तो आप कर सकते हैं। तो हालांकि ऐसा स्वीकृत दी। तो कुछ जगह पर ऐसे होते हैं जहाँ पर कुछ भी साधन नहीं है, ठंडे स्थान हैं, लोगों के पास जीवन जीने के लिए दूसरा रास्ता नहीं है, जीवन केवल जानवरों पर ही अपने जीवन को गुजारते हैं। तो ये एक अपवाद है, ऐसा नहीं है कि मैं बढ़ावा दे रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो एक अपवाद है। तो दूसरी जगह पर जहाँ पर सब व्यवस्था है, जहाँ पर हम फलों का उत्पाद कर सकते हैं, सब्जियों को पैदा कर सकते हैं, तो इनको कोशिश करना चाहिए। और जो कि गाय भैंस इनकी मीट का जो उत्पाद करते हैं उनको कम करना चाहिए। तो पर्यावरण के हिसाब से देखिए ये खराब चीज़ें होती हैं, इससे बहुत सारा नुकसान, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। अगर बहुत बड़ा आप बी फार्म को बना देंगे तो उसकी जगह पर आपको एक सब्जी का बगीचा बनाएं, सब्जी पैदा करें, तो बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो जब मैं पहली बार भारत में आया तो अक्सर जो तिब्बती लोग हैं तो ज़्यादातर वो मांसाहारी होते हैं या मांस खाते हैं। तो मैं भारत में जब पहुंचा तो 1964 के आसपास मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की कि मैं सब्जी खाऊंगा, मतलब वेजिटेरियन रहूंगा, कोई भी मीट का सेवन नहीं करूंगा। तो मैंने वास्तव में शुरुआत भी की। फिर उसके एक अवसर पर मैं जापान भी गया, अपने बड़े भाई के साथ मैं जापान भी गया और साथ साथ हम लोग लंच कर रहे थे। तो वो हमेशा मेरी मजाक करते थे और मुझे एक प्रकार से चिढ़ाते थे क्योंकि वो मीट खाते थे और मैं वेजिटेरियन था, मैं शाकाहारी था। तो लगभग कोई 20 महीने तक मैं शाकाहारी बना रहा। तो फिर उसके बाद मुझे जॉन्डिस हो गई और मेरा पूरा जो शरीर पीला हो गया। तो फिर उसके बाद मैं मजाक के तौर पर कहता था कि मैं एक प्रकार से एक जीवित बुद्ध की तरह, जो बुद्ध का जो कलर पीला रंग का होता है उसी प्रकार से मैं हो गया। तो ये नहीं कि मैं धर्म के अभ्यास से हो गया हूँ, ये इसलिए हुआ है मैं बीमारी की वजह से मेरा शरीर पीला हो गया। तो ये मजाक के तौर पे मैं अक्सर कहता हूँ। वेस्टर्न एलोपैथिक डॉक्टर्स, फिर उसके बाद पाश्चात्य के डॉक्टर और तिब्बती डॉक्टर, तो उन्होंने मुझसे एक प्रकार से सलाह दिया कि उन्होंने कहा कि आपको जीवन चलाने के लिए, क्योंकि आपका जो आदत है या फिर शरीर की ऐसी बनावट हो गई है, तो आपको कभी कभी जो मांस का भी सेवन करना चाहिए। तो ये मैं अपनी कहानी आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद जो मेरा जो गॉल ब्लैडर है तो उसमें पत्थर आ गया अथवा पथरी बन गई।
strict remain vegetarian. तो शायद डॉक्टर लोगों ने यही सलाह दिया कि मैं जो एकदम से अगर छोड़ दिया, इसकी वजह से ये जो बीमारी हो गई, उसके साथ साथ उसके कि बहुत सारे जो नट्स हैं उनको मैं खाने लगा। Went to Delhi hospital. फिर दिल्ली अस्पताल गया Whole gallbladder. और फिर दिल्ली अस्पताल में जाकर के जो मेरा गोल ब्लैडर, जो पित्त की थैली पूरी मेरी निकाल दी, ऑपरेशन के द्वारा निकालनी पड़ गई। This person, you see, physical looks sort of healthy, but no longer one important, what's it, physical element, gallbladder, no longer there. तो मैं कहता हूँ लोगों कि मेरा शरीर तो आपको देख रहा है, लेकिन जो महत्वपूर्ण एक शरीर का गोल ब्लैडर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, मेरे अंदर नहीं है, वो तो हटा दिया गया। Because of the style. तो फिर पुनः से मैं जो हमारी प्राचीन जो जीवन शैली थी उसको अपनाना पड़ा। ये मेरी मजबूरी बस इस तरह से हो गया। But meantime, all our major monastic institutions, लेकिन India, भारत में जो भी हमारे बड़े बड़े जो मठ हैं vegetarian food. और जो भी विद्यालय हैं, तो उनसे एक प्रकार से मैंने कहा कि आपको शाकाहारी भोजन करना चाहिए, और उन लोगों ने माना भी। Our school, colleges और हमारे जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, follow. और इस बात को मानते हैं और जो शाकाहारी भोजन का उपयोग करते हैं। Because of the illness, you see, become non-vegetarian, but तो मैं भी बीमारी की वजह से create एक प्रकार से शाकाहार को छोड़ना पड़ा, the promotion. लेकिन फिर भी मैं जो शाकाहार है उसको हमेशा प्रमोट करता हूँ, Now I व्याख्या उसके लिए लोगों को प्रोत्साहित करता हूँ। beef farm in India, I think better. तो ये मेरी अब शारीरिक मजबूरी की वजह से मुझे कभी कभी लेना पड़ता है। तो साउथ इंडिया में मैंने देखा कि बहुत सारे बीफ फॉर्म हैं, I think eventually to reduce. तो लेकिन शुरुआत में तो काफ़ी थे और आज के समय में उनकी संख्या कम होती जा रही है। Should be और मैंने उनसे कहा भी कि जहाँ पर आप गाय भैंस बकरी इनका पालन करते हैं, तो वहाँ पर आप फलों का उत्पाद करें, सब्जियाँ लगाएं। some benefit. One way, as I mentioned earlier, तो जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा था, तो इससे दो प्रकार से नुकसान होते हैं। एक तो पर्यावरण को नुकसान इससे होता है। तो ये इस पर मेरा एक विचार है कि शाकाहार और मांसाहार पर। The next question, His Holiness, is from Dr. Danilo तो Santinella, अगला क्वेश्चन डॉक्टर डेनिलो सेंटिनेला, the head of जो कि योगा University प्रैक्टिशनर of हैं, Sao Paulo, Brazil. तो यूनिवर्सिटी साओ पोलो के एक हेड हैं। Please unmute your mic. Thank you, Your Holiness, and तो परम पावन जी, it's an honor to be आपका here. धन्यवाद। तो मेरा प्रश्न है कि परम पावन जी, आप विज्ञान में बहुत आप रुचि Your रखते Holiness हैं is both fond of और आप science, सेकुलर या but फिर also a keeper धर्म of निरपेक्ष one of the पर most secular जो व्यवस्था है उसके प्रति भी What प्रमोट would करते you- हैं। would be your, what would you consider to be the greatest challenge? तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो कि विज्ञान के जो उधार जो साइंटिफिक एविडेंस को प्राप्त करना चाहते हैं, और ख़ासकर जो योगा, आयुर्वेद और मेडिटेशन या ध्यान में अगर अभ्यास करना चाहते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहते हैं? as a result of my was a discussion with modern scientists, they up to late 20th century तो मैं अक्सर जो कहता हूँ कि pay attention about mind. तो जो पहले के 19-20वीं शताब्दी के अंत तक के जो डॉक्टर थे या जो साइंटिस्ट थे, वो केवल चित्त पर इतना ध्यान नहीं देते थे। जो हमारे मस्तिष्क है उसको तो मानते थे, लेकिन जो मन या चित्त उसके बारे में उनकी जानकारी नहीं थी। फिर उसके बाद 20वीं शताब्दी के अंत से लेकर के बाद तक उन्होंने बहुत सारे लोगों पर परीक्षण किया और कुछ ऐसे बड़े बड़े साधकों पर भी परीक्षण किया जो कुछ घंटों तक अभ्यास कर सकते थे या करते रहते हैं। तो उनके सिर पर इन वैज्ञानिकों ने कुछ
एक प्रकार से अलग अलग जो वैज्ञानिक इक्विपमेंट लगा दिए, तो उन्होंने फिर जो हमारे जब ध्यान करते हैं उस समय मस्तिष्क की क्या गति रहती है, व्यवस्था कैसी रहती है, और तब उन्होंने पाया कि जब कोई व्यक्ति ध्यान में होता है तो मन में जो एक प्रकार से जो ग्राफ बनते हैं या मन के जो विचलन या गतिविधि वो बहुत ही कम होती है या एक सहूलियत वाले होते हैं। फिर उसके बाद जो आज वैज्ञानिक लोग मानने लगे हैं कि मस्तिष्क के अलावा भी जो हमारा एक चित्त होता है जो कि मन के द्वारा भी एक प्रकार से काबू में किया जाता है। तो आज के वैज्ञानिक लोग भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं और पहले भी कर चुके हैं। तो कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं कि कुछ तिब्बती जो अभिसाधक हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी सांस तो रुक जाती है जो, या फिर कहा जाए कि चिकित्सीय रूप से तो मृत हो जाते हैं, उनका हृदय चलना बंद कर देता है और रक्त संचार है वो भी बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी उनके जो शरीर है फिर भी कुछ हफ्तों तक तरोताज़ा रहता है। तो जैसे कि मैं हमारे जो टीचर थे, 13 days, तो सीनियर टीचर जो मेरे थे, गुरु थे, उनका भी शरीर जो 13 दिनों तक तरोताज़ा रहा। और कुछ ऐसे भी लिए हैं। तो साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में भी एक गुरु हुए, तो वो उनका शरीर 21 दिन तक तरोताज़ा रहा। remain very fresh. So now some Russian scientists और अभी कुछ रूस के वैज्ञानिक और अमेरिका के वैज्ञानिक इस विषय पर उन्होंने कुछ एक प्रकार से अपने औजार यहाँ छोड़ के गए हैं। no longer breathing. तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनकी मृत्यु हो जाती है और जो साधक हैं खास करके, तो उन पर परीक्षण करते हैं। Last few days, तो कुछ दिन पहले की बात है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसका शरीर तरोताज़ा रहा है। तो रसिया के जो मॉस्को यूनिवर्सिटी में और कुछ वैज्ञानिकों लोगों ने इस पर जो परीक्षण किए, और बहुत सारे वैज्ञानिक अभी इन केसों पर इस प्रकार के लोगों पर परीक्षण करते हैं। So now, among the scientists, while they accepted beside brain there is mind. तो अब वैज्ञानिक लोग मानने लगे हैं कि मस्तिष्क के अलावा भी चित्त या मन रूपी कोई चीज़ होती है जिससे कि करुणा इत्यादि का अभ्यास किया जाता है। Also now paying more attention. और इसके अलावा बहुत सारे वैज्ञानिक जो हमारे Compassion. जो करुणा का अभ्यास, इसके प्रति भी रुचि दिखा रहे हैं। Now modern time, now in last few decades, now among the scientists, the word of compassion. तो वैज्ञानिक लोगों में जो हमारा जो शब्द कंपैशन या करुणा, उस चीज़ कंपैशन या करुणा का उपयोग करने लगे हैं, तो वो भी इसको मानने लगे हैं। तो पहले लोग इसको मानते थे कि ये करुणा और या फिर भाईचारा इत्यादि ये धार्मिक बातें हैं। तो अब वैज्ञानिक लोगों का दृष्टिकोण बदला है। वो कहते हैं कि अगर करुणा का अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे शरीर के लिए भी लाभदायक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। World need more compassion. और वास्तव में सत्य बात तो ये है कि विश्व को ज़्यादा से ज़्यादा करुणा की आवश्यकता है। They say we और कुछ वैज्ञानिक लोग मानते हैं और कहते हैं कि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, और जो भी सामाजिक प्राणी है या जीवधारी है वो जीवन से ही उसमें their own community. तो दूसरे अपने समाज के लोगों के लिए भला करने की एक Own community. क्षमता रहती है, एक प्रकार से उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो इसलिए हम लोग भी सामाजिक प्राणी हैं। Also you see those और दूसरों जानवरों को देखें तो उनमें इतनी ज़्यादा क्षमता नहीं, या फिर उनके अंदर ऐसा भावना नहीं रहती है। about their own community, like some animal. So we belong
social animal. तो इसलिए हम लोग समाज से जुड़े हुए हैं, सामाजिक प्राणी हैं। We human being तो हमारी जो प्रकृति है या स्वभाव है passionate. वो ज़्यादा As soon as करुणामयी we है। born, तो जैसे ही हम पैदा होते हैं, जन्म लेते our हैं, life तो entirely हमारा जो on संपूर्ण mother's जीवन compassion, अपनी माँ के जो करुणा है उस पर आधारित होता है, अपने परिवार के लोगों के then the family, करुणा पर हमारा जीवन आधारित होता है। their livelihood depend on community. और उसके अलावा जो हमारा जीवन है वो समुदाय पर आधारित होता है। That sort of reality. तो इस सत्य को जानने के लिए ये हमने परीक्षण भी करना चाहिए, मानना चाहिए कि हम लोग जो 7 अरब के आसपास जो मनुष्य जाति है, Their life यहाँ तक कि व्यक्ति विशेष के आधार पर भी देखें तो समुदाय पर आधारित होते हैं। Eastern world, तो समुदाय भी जो हमारे पश्चिमी, पूर्वी पर, उत्तरी, दक्षिणी पर एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। not important. तो इसलिए जो राष्ट्रीय सीमाएं हैं वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे 7 अरब के आसपास भाई बहन हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। Try to promote human compassion, तो मेरा एक human loving kindness. जो एक प्रकार की प्रतिबद्धता है Whether तो वो सभी लोगों के लिए करुणा मैत्री रूपी है। this person, तो चाहे वो धार्मिक व्यक्ति हो या न हो, this religion, that religion, और धार्मिक व्यक्तियों में भी philosophy, इस उक्त धर्म को मानता हो, religion carries जिस भी धर्म को मानता हो, message. तो हर धर्म का एक संदेश होता है को प्रेम और करुणा मैत्री का संदेश होता है। Different philosophical view. तो अलग अलग धार्मिक विचारधारा रहती है, लेकिन जो मुख्य एक संदेश है वो समान होता है। Then now large number, I think out of 7 billion, perhaps, I think a few billions non-believer, but doesn't matter. तो कुछ कई लाखों की संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं या नास्तिक जिनको कह सकते हैं। So तो कोई बात नहीं, इन सभी को, हम सभी को, धर्म मानने वाले हों न मानने वाले हों, हम सभी को एक साथ रहना है। तो लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक दूसरे के जो भावना है, दूसरों का विचार है, उनके साथ जुड़ के रहना चाहिए। 7 billion human being, as a social animal, there is sort of, or should nature sort of naturally some kind of potential. तो हम लोग मनुष्य होने के नाते परहित करने की एक स्वतः हमारे अंदर एक भावना रहती है कि दूसरों का हम लाभ कर सकते हैं। तो मेरा भी एक प्रकार से प्रतिबद्धता है कि जो मानव हित के लिए कुछ कर सकूं और जो 7 अरब के आसपास लोग में एकता आए। That is, I think, the best way to bring peaceful world. तो मुझे लगता है कि एक सुखमय या शांतिमय विश्व अगर बनाना चाहते हैं तो हथियार बनाने से, हथियार ज़्यादा खरीदने से इससे संभव नहीं हो सकता। ये मानवीय तरीका भी नहीं है। Human anger, तो इससे मानव का क्रोध बढ़ता है, destructive emotion. इससे क्लेश बढ़ते हैं। So oneness of 7 तो billion इसलिए सभी मनुष्यों को एक रूपता में अगर आप देखना चाहते हैं develop तो इसलिए peaceful world. हमें एक सुखमय, शांतमय पर्यावरण या विश्व के बनाने की आवश्यकता है। Politically, also now, these views are very important. तो इसलिए इस प्रकार के विचार हैं वो राजनीतिक लोगों को भी समझना चाहिए, जो कि युद्ध हैं, हिंसा हैं। National interest. तो ये केवल और केवल राष्ट्र के इंटरेस्ट पर, 7 billion रुचि पर आधारित होते हैं। oneness of 7 billion तो हम लोग तो 7 अरब के आसपास लोगों के बारे में सोचना चाहिए। not there. We all same human being. हम सभी लोग समान हैं। Happy life. They also want. मैं भी सुखी जीवन चाहता हूँ, दूसरा भी सुखी जीवन चाहता है। So one human being try to kill other human being. अगर एक दूसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारे तो ये भी एक बुरी बात है और ऐसे नहीं होना चाहिए। We can really develop. और शिक्षा के द्वारा
हम इस विश्व को एक शांतिमय विश्व के रूप में बदल सकते हैं। Your Holiness, the Global Indian Physician Collaborative aims to foster cross systems learning to arrive at the best possible approach to prevention. तो ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन We have with us इन्होंने our कुछ leadership, कार्य Dr. किए हैं। Pratap Reddy, Dr. Sudhakar तो अभी Jonathan, डॉक्टर सुधाकर, Suresh Reddy, डॉक्टर Dr. सुरेश Sambhu Rao, रेड्डी Dr. पारेख, Dr. Sudhir Parekh from the डॉक्टर US, Dr. Ramesh Mehta बहुत from सारे the जो United लोग हैं, Kingdom, रमेश मेहता Dr. Sunil यूके से Patel, हैं, Dr. Arun Garg सुनील पटेल, from अनिल Canada, गर्ग the जो कनाडा से executive हैं, of CAPIO, and our members from 49 और अलग अलग countries. 49 देशों के सदस्य हैं। Leaders would like to ask questions तो of हम Your लोग के जो Holiness. 3 लोग Let हैं me आपसे invite प्रश्न Dr. करना Sudhakar चाहता हूँ। Janagada, तो सबसे पहले gastroenterologist and डॉक्टर hepatologist सुधाकर from US, जनागलाडा, the यूएस president of प्रेसिडेंट, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन, API. आप ही के सदस्य हैं। वे एक बार प्रेसिडेंट हैं। तो इनका क्वेश्चन है, Your Holiness, this तो is डॉक्टर Sudhakar Janalagada. I am from Georgia. जॉर्जिया से बोल रहे हैं। I represent over 100,000 तो doctors. इनका in क्वेश्चन Central है American कि हम लोग जो Association of श्रद्धा और Physicians रिलीजन, Ireland. आध्यात्मिकता, I am from Guntur, तो अपने Amravati, बच्चों को where I इनको born. कैसे I'm व्याख्या कर sure सकते the हैं। land is blessed by you. तो मैं अमरावती Talk. गया हूँ और परम पावन जी आप वहाँ पर गए हैं, तो मैं भी वहाँ पर गया Question to हूँ। you. How can तो इनका प्रश्न है कि बच्चों को जो श्रद्धा, आध्यात्मिकता spirituality और to धर्म our children? की व्याख्या कैसे कर सकते हैं, बच्चे कैसे समझ सकें। As I mentioned earlier, all major religious तो traditions जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, कह चुका हूँ different philosophies कि सभी बड़े बड़े जो धर्म हैं, creator. तो सिद्धांत के तौर पर कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर है, कुछ ईश्वर को नहीं मानते हैं, कोई नास्तिक हैं, कुछ आस्तिक हैं, कोई ईश्वरवादी अनिश्वरवादी हैं। तो दार्शनिक दृष्टिकोण के आधार पर देखें तो उसमें अंतर होते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर सभी में एक समान व्यवस्था रहती है। सभी में करुणा, मैत्री, सहिष्णुता, भाईचारा, शांति। You accept the religious sort of the system or तो tradition. तो आप चाहे इस धार्मिक परंपरा को मानते हो या ना मानते हो, लेकिन फिर भी जो इसका सार है वो सारे लोगों के लिए आज के समय में भी प्रासंगिक है। जैसे कि आप बच्चों को देखें, If you ask, you see children, student, अगर आप बच्चों को पूछते हो, स्टूडेंट्स को पूछते हो, छोटे जो बच्चे होते हैं, smile, तो उनको पूछो कि आप अपनी माँ का जो जो खुश मुस्कुराहट वाला चेहरा चाहिए या फिर आपको क्रोध वाला चेहरा, तो बच्चे यही कहेंगे हाँ मैं अपनी माँ का एक मुस्कान वाला चेहरा चाहूँगा। passion is my mother. तो मैं अपना उदाहरण दूं कि मेरी करुणा के जो सबसे पहले जो कोई शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं वो मेरी माँ हैं। Negative face, तो उन्होंने कभी भी मुझे नकारात्मक या गुस्से वाला चेहरा नहीं दिखाया, passionate face. तो हमेशा उन्होंने मुझे ऊपर करुणा की, दया की है। We can, we can say to student, do you prefer smile teacher or और इसके साथ साथ अगर आप बच्चों से अगर पूछें quite strict? कि जो आपके शिक्षक होते हैं तो उनको जो मुस्कान वाले शिक्षक आपको पसंद हैं या ऐसे टीचर जो गुस्सा करते हैं, आपको मारते हैं, तो ये स्वाभाविक है, बच्चे यही कहेंगे जो टीचर जो हमारी रक्षा करते हैं, हमसे मुस्कुराते रहते हैं, तो इसको सब कोई पसंद करता है, ये स्वाभाविक बात है। Or this teacher, तो बच्चे भी कहेंगे कि वास्तव में ये टीचर तो बहुत अच्छा है, ये गुरुजी तो बहुत अच्छे हैं, classroom, और क्लासरूम में बहुत अच्छी तरह से वे पढ़ाते भी हैं, उसके साथ साथ मेरी इस प्रकार से केयर भी करते हैं, मेरे पूरे जीवन की एक रख रखाव करते हैं, देखभाल करते हैं। तो इस प्रकार की बच्चे खुद उत्तर दे देते हैं। enter classroom, तो कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, टीचर ऐसे भी होते हैं कि जब बच्चे अगर feeling क्लास में प्रवेश करते हैं तो अगर टीचर मुस्कुराते हुए बच्चों का स्वागत करते हैं, उनको देखते हैं, तो बच्चों को और ज़्यादा खुशी महसूस होती है, अच्छा लगता है। loving kindness, altruism तो इसलिए प्रेम, करुणा, important. परहित ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Themselves, while they study about academic subject,
तो जब बच्चे जब अध्ययन कर रहे हों, जो भी अपने विषय को पढ़ रहे हों, तब टीचर्स लोगों को चाहिए कि आप दयालुता दिखाएं you get more friend. और इसके साथ साथ आप ज़्यादा मित्रवत उनसे व्यवहार करें। This smile, warm-heartedness is most important part. तो दयालु भावना या विचार बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो अपने जो चित्त को, मन को, Without अगर हमारा मन या ब्रेन बहुत ही अच्छा है, हम लोग बुद्धि वाले हैं, लेकिन अच्छा हृदय ना हो, तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि जो आपका अच्छा, जो जिसको आप कहते हैं हम बहुत होशियार हैं, तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि सुख दे। तो संभवतः ये बहुत सारे दुश्मन भी बना सकते हैं। then अगर आप एक अच्छे दयालु व्यक्ति हैं, become अच्छे विचार वाले हैं, तो निश्चित रूप से एक knowledge, परमार्थ रूपी चित्त बनेगा, परहित रूपी चित्त बनेगा। anger. अगर आपके अंदर जिस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध होता है, वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। तो ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर समाज में मुश्किल पैदा करते हैं। तो इसलिए जो हमारे शिक्षा का क्षेत्र है, तो उसमें भी करुणा रूपी चित्त और जो हमारा ज्ञान है, दोनों को, अच्छे ज्ञान, इन दोनों को साथ रखना चाहिए। According to their own experience, they prefer smile. तो बच्चों को भी पूछो तो वो भी ऐसा ही टीचर पसंद करेंगे जो मुस्कुराता हो, जो क्रोधित चेहरा वाला हो, गंभीर चेहरा वाला हो, उसको शायद बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। Knowledge. Then you become more useful member of the society. तो तभी जा कर के, अगर आपके अंदर ऐसी एक व्यवस्था, एक प्रकार के विशेषताएं हों, तभी जा कर के समाज में ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन डॉक्टर रमेश मेहता, यूके से, प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन, बापियो। तो जो पूर्व में गापियो के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो डॉक्टर रमेश मेहता, I really admire तो इनका क्वेश्चन है कि those और जो साइकोलॉजिकल जो कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों में डर या भय पैदा हुआ है, हेल्थ केयर में भी जो लोग काम कर रहे हैं, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? helping तो जो डॉक्टर और नर्स जो मदद कर रहे हैं illness. और जिस कोरोना के समय में जो मदद कर रहे हैं, तो उनकी हिम्मत को मैं दाद देता हूँ। एक प्रकार से मिसाल पेश की है। Their own एक प्रकार से देखा जाए तो उन्होंने अपने जीवन को people. एक प्रकार से नौछावर जैसा किया हुआ है, दांव पर लगा हुआ है। तो मैं इनकी वास्तव में बहुत ही अनुमोदन करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। Kasa. Pandemic. Ka. Pandemic. Ka. Pandemic. Oh, this illness. तो आज ये जो बीमारी है, कोरोना की रूपी एक वैश्विक बीमारी है, ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हुई है। पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। As I mentioned earlier, you see, I always look holistic way. तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मैं एक वैश्विक रूप से मैं सोचता हूँ। Ancient Indian sort of scripture mentioned eventually we human being on this planet eventually, you see, disappear. तो कुछ में कहा गया है कि कुछ ग्रंथों में भी कहा गया है कि समय आने पर एक समय ऐसा होगा कि ये जो पूरा विश्व एक प्रकार से नष्ट होगा। Violence. Now that already happened. और ऐसा भी समय आएगा कि बहुत सारा जो हिंसा रूपी समाज भी बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि पिछले समय में जो प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध जो हुए हैं, तो बहुत सारे लोग उसमें हताहत हुए हैं। Weapons. और उसके बाद लोगों का विचार भी आया कि हथियार होना चाहिए, औजार होना चाहिए, जो मिलिट्री ताकत है वो होनी चाहिए। तो इस प्रकार के पहले के जो विचार थे, तो अब वो विचार नहीं होने चाहिए। ये पुरानी बातें थीं। तो अगर विश्व शांति अगर चाहते हैं, तो इस प्रकार की जो ताकत है, हथियारों की ताकत, उसका ज़्यादा लाभ अब नहीं हो सकता है। Is old thinking. तो अगर औजारों का उपयोग करते हैं, हथियारों का उपयोग कर रहे हैं, तो ये प्राचीन सोच है। तो जैसे समाज में देखें, पहले सामंतवादी व्यवस्था थी, राज व्यवस्था थी, एक राजा महाराजा हुआ करते थे, Force.
और उस समय लोग अपने राज्य को जीतने के लिए ताकत का उपयोग किया करते थे। sort of तो आधुनिक समय में हम एक प्रकार से लोकतंत्र में हैं। investigate. If you ask individual soldier, अगर आप एक they prefer सैनिक को भी अगर आप पूछो, जो सीमा पर लोग होते हैं, तो उनसे अगर एक ऐसे पूछो क्या आप अपने जीवन को न्यौछावर करना चाहते हो, their fight. तो वो कोई भी शायद अगर तरीके से कोई भी मरना नहीं चाहेगा, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। वो ऑर्डर का फॉलो करते हैं, आदेश का पालन करने की वजह से युद्ध में उतरते हैं। और फिर उनसे कहें कि क्या आप Not killing each other. एक दूसरों को तो शायद क्या आप मारना नहीं चाहोगे, तो उनसे शायद वो यही कहेंगे हाँ हम हत्या नहीं करना चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। तो सबका यही विचार रहता है। तो युद्ध या फिर हत्या ये पुरानी सोच है, पुरानी बातें हैं। This century should be तो मैं अक्सर कहता हूँ कि 21वीं शताब्दी जो है वो संवाद की शताब्दी होना चाहिए, कि जहाँ पर भी कहीं मतभेद हैं, मनभेद हैं, तो उसमें एक बातचीत करके समाधान निकालना चाहिए। तो इसलिए यही जोर देता हूँ कि संवाद की शताब्दी बने, बातचीत करके इस चीज़ को हम माने। no longer used. तो इतना मिलिट्री की जो ताकत है एक दूसरे को मारने की, तो उतना आवश्यकता नहीं लग रही है। एक दूसरे से बातचीत करके जहाँ भी जो समस्या है उसको समाधान करना चाहिए, Same human brothers. क्योंकि वो भी लोग जो सीमा के पार और इस पार दोनों भी भाई बहन हैं। हमें को भी एक दूसरे के साथ रहना है, इस पृथ्वी पर साथ साथ जीना है। So now, those doctors, nurses who really also they determined तो जो डॉक्टर और नर्स जो एक इस प्रकार की समस्या में लोगों की मदद कर रहे हैं, एक प्रकार से लगे हुए हैं, in spite danger or they themselves also get some danger. और हालांकि वो खुद भी इस बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं, फिर भी इन लोगों की मदद कर रहे हैं। ये वाकई एक काबिल तारीफ है। Doctors, nurses, with full of sort of sense of concern. तो डॉक्टर और जो नर्स हैं वो परहित के विचार को लेकर के, मरीज के लोग के हित के लिए लेकर के जो कार्य कर रहे हैं, Some inner protection. तो इससे इस प्रकार से एक आत्मबल मिलता है। Meantime, little bit sort of hesitate. अगर आप कार्य भी कर रहे हैं उस समय संदेह भी हो You see, तो भी ठीक नहीं रहता है। one period violence, one period तो जैसा तो एक समय में हिंसा हो, एक समय जो बीमारी हो, मुखी करे, और एक प्रकार भुखमरी हो, then world disappear. तो ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं और विश्व जो है नष्ट हो जाएगा। तो ये ग्रंथों में भी जिक्र इस तरह से किया गया है। Now facing तो इसी प्रकार से जो हम लोग जो एक प्रकार से अभी एक बीमारी का जो सामना करेंगे, तो शायद इसका भी एक उदाहरण हो सकता है जैसा ग्रंथों में कहा गया। लेकिन फिर भी हमें आत्मबल पैदा रखना चाहिए, आत्मशक्ति रखनी चाहिए। meantime, you see the research, the scientists, they already now carry some also the experiment. तो इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि ऐसे याद बैठ जाएं, तो वैज्ञानिक लोग भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं, इस चीज़ों को बीमारी से मुक्त होने की कोशिश कर रहे हैं। According sort of each community's profession. You तो see, हर एक ordinary people जो कम्युनिटी जो भी अपने समुदाय, अलग अलग लोगों के अपने कार्य हैं, तो उनको करते रहना चाहिए और आत्मबल को रखना चाहिए, खुद में एक आंतरिक रखना चाहिए। और तो सरल आंसर जो है, उत्तर है, मैं कहना चाहूँगा 8वीं शताब्दी विद्वान ने कहा है, any problem शांतिदेव जी ने कहा है कि कोई भी समस्या जिसको हमें पड़ताल करना चाहिए, तो वो समस्या जिससे हम निजात पा सकते हैं, तो फिर हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। if the problem अगर कोई समस्या ऐसी है overcome, then जिसको हम
नष्ट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, तब भी चिंता नहीं करना चाहिए। तो दो प्रकार की बातें हैं, जिसको हम कर सकते हैं उसे करना चाहिए, जो नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें चिंता नहीं करना चाहिए। तो जो चीज़ें हैं, परिस्थिति है, तो उसको हम जो बदल नहीं सकते हैं तो उसमें चिंतित होने की क्या बात है। Now, according some तो कुछ पर्यावरण के वैज्ञानिक लोग हैं, पर्यावरणविद हैं, next few तो वो उन्होंने खुद कहा है, रिसर्च किया है decreasing, कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, विश्व ताप बढ़ रहा है। the few decades तो कुछ दशकों बाद ये जो विश्व है एक प्रकार से इतनी ज़्यादा विश्व ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी कि ज़्यादातर जो नदियां हैं, झीलें हैं, वो सूख जाएंगी, इतनी गर्मी की वजह से सूख जाएंगी, ऐसी उन्होंने एक शोध किया है। तो ये एक बात है, ये भी एक, man-made. तो ये कोई नेचुरल तरीके से प्राकृतिक हैं, मनुष्यों के द्वारा तो बनी नहीं है। But meantime, we should pay more attention. लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें इसको छोड़ दें, ऐसा ही ध्यान न दें, तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, पर्यावरण पर ध्यान देना चाहिए। तो तिब्बत का ही उदाहरण देख लीजिए कि पूरे संपूर्ण एशिया में जो चीन, एशिया और भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तो इसमें जो बड़ी बड़ी नदियां हैं वो तिब्बत से आई हुई हैं। I describe तो कभी कभी मैं कहता हूँ supplier कि जो तिब्बत जो है पानी का एक स्रोत है, पानी की सप्लाई देते हैं use of people जो कई करोड़ लोगों को this part of the world. इससे पानी की पूर्ति होती है। Now, preserve ecology in तो Tibet. इसलिए आपकी जो तिब्बत का पर्यावरण है उसको भी रख रखाव करना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Tibetan people, 6 or 7 million, तो ये केवल 60 लाख तिब्बती लोगों के लिए की बात नहीं है, पूरे एशिया के लोगों के जीवन का सवाल है। water, river from Tibet. So now ecology, something very important. तो इसलिए I was in Tibet, जो इकोलॉजी है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब मैं तिब्बत में था तब मैं इसके बारे में नहीं जानता था, reach India, तो तभी जाना जब मैं भारत में पहुंचा। different countries. तो उसके बाद अलग अलग देशों में गया, You cannot drink तो उसके बाद too much polluted. तो कुछ लोगों ने कहा ये पानी आप नहीं पी सकते हो, ये गंदा पानी है। तब मुझे लगा कि अच्छा, Same water तो ये वही पानी, in Tibet, तो तिब्बत में तो आप कहीं से भी कहीं भी किसी भी पानी को आप पी लो। feel thirst. तो जब भी हमें प्यास लगते थे तो कहीं भी जो रास्ते में नदी में या फिर कहीं का भी पानी पी लो, कोई दिक्कत नहीं होती थी। Even फिर उसके बाद आने के बाद वही पानी, cannot drink. तो कुछ पानी को तो हम पी नहीं सकते, कहते ये गंदा है, दूषित है। I pay more attention about the ecology. तो उसके बाद जा कर के कि जो पर्यावरण या जो गंदगी है या इसके पर भी ध्यान देना चाहिए। Because of Stockholm, तो स्वीडन स्टॉकहोम, तो उसमें के बीच में एक बड़ी नदी है। they told me तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे मित्रों ने कुछ कहा, कुछ any fish, तो कुछ वर्ष पूर्व से उसमें कोई भी मछली देखने को नहीं मिलती है, factories. क्योंकि उस नदी में बहुत सारी जो फैक्ट्रियों का दूषित जल जा रहा है। Take more attention, pay more attention about, you see, the ecology. तो अब लोग उस पर्यावरण के, उस नदी को साफ करने के भी कोशिश कर रहे हैं। Maybe around 5-10 years ago, तो ये 5-10 वर्ष पूर्व की बात है। reappear. तो फिर से जब नदी साफ की गई, फिर पुनः कुछ मछलियाँ वहाँ पर होने लगी, पैदा होने लगी। Some responsibility. तो हम लोगों की कोई जिम्मेदारी बनती है कि पर्यावरण के प्रति भी हम ध्यान दें, पानी जो जल है उसको भी हम ध्यान दें। We can do. तो इसको हम कर सकते हैं, इसको रख रखाव कर सकते हैं। और ओजोन, Ozone layer. Ozone layer. One occasion with some scientists, they mentioned तो एक समय कुछ वैज्ञानिक लोगों ने कहा था कि जो ओजोन परत है, ecology, these things, and try to use, because of the pure energy, wind energy, solar energy, तो इसको हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी जो है, जो पावर हैं, उसके द्वारा खासकर because of the जो हवा के द्वारा So we have, you see, the जिससे एनर्जी का हम उपयोग कर बनाते हैं, तो इनको बना सकते हैं जिससे कि ओजोन को नुकसान ज़्यादा ना हो।
तो कुछ क्षेत्रों में तो हम खुद ध्यान दे सकते हैं और कुछ कार्य भी कर सकते हैं safe ecology. और जिससे हम पर्यावरण का भी Your रखरखाव Holiness, सुरक्षित कर thank you very सकें। much. Great Britain has suffered really badly with this pandemic and more than 45,000 people died. तो But you तो know, your अभी message तक has been very soothing. तो बहुत ज़्यादा And, लोगों का जो very मृत्यु much. हुआ है। तो आपका जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो अंतिम में क्वेश्चन डॉक्टर सुधीर पारेख का है। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि जो धर्म है वो क्या इस कोरोना के समय में लाभदायक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। His Holiness, can you guide us? What is the role of religion in a world affected by an unprecedented crisis like the COVID pandemic? Please guide us. I feel, as I already mentioned, all religion is in तो जैसा कि मैंने पूर्व में कहा है loving kindness, कि हर धर्म का संदेश जो प्रेम, करुणा, भाईचारा, मित्रता है forgiveness, और उसके साथ साथ जो क्षमा, सहिष्णुता self-discipline. और आत्म Whether एक प्रकार से दा जाए। complicated philosophy, religious philosophy or not, the real essence of religious teaching तो धर्म को आपके दर्शन को माने या न माने अलग बात है, अलग अलग व्यवस्थाएं भी होती हैं। तो इसके धर्मों के सार को आपको मानना चाहिए। as I already sort of mentioned, we already discussed. और पहले भी मैंने कहा है कि जो मानसिक जो सुख है, मानसिक सुख की वजह से जो अच्छा शरीर भी बनता है, As I already शरीर भी ठीक रहता है। then, as a human nature, when we face some desperate situation, then तो मनुष्य होने के नाते जब हमें कुछ समस्याएं पैदा होती हैं basis of all या फिर दिक्कतें होती हैं तो कुछ धर्म हैं तो उससे लाभ होता है, जो ईश्वर को मानता है कि हे भगवान मेरी रक्षा कर दें। through your own effort, तो जब आप अपने प्रयासों से जब छूट जाते हैं, कोशिश करते हैं तब पूरा नहीं होता है, तो आप कहते हैं कि भगवान इसको मेरे को बचा ले या फिर मेरा भला कर दें। तो भगवान या ईश्वर लोगों की मान्यताओं के अनुसार कुछ रहस्यमयी एक शक्ति है, लोगों को मदद करते हैं। तो ये बात ईश्वर को मानने वाले लोगों के लिए है। hopeless. तो ऐसी अवस्था आती है जब कोई उम्मीद नहीं रहती है तो कहते हैं कि हाँ ईश्वर मेरी मदद करे। The most important, you see, to use the God's message. तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईश्वर या बुद्ध जिनके जो संदेश हैं और खासकर जो करुणा और मैत्री के जो संदेश हैं उनको मानना चाहें, उनको आप वो अगर उपयोग करते हैं तो ज़्यादा फायदा रहता है। Paying more तो नालंदा परंपराओं को भी देख लें कि बहुत सारे वैज्ञानिक लोग जो हैं वो देख रहे हैं, मानते हैं with interdependency. कि हर चीज़ एक दूसरे पर आश्रित है, प्रत्येक समुत्पन्न है, आश्रित है, निर्भर है। Absolute existence. Existence, any existence due to other factor. और जो भी चीज़ें हैं वो दूसरे फैक्टर की वजह से Perhaps I think unique अस्तित्व में होते हैं। Buddhist concept. तो ये शायद बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म में कहते हैं कि हर एक चीज़ प्रति समुत्पन्न है, हर चीज़ एक दूसरे पर आश्रित है। So now modern science also you see everything. तो इसलिए जो आधुनिक विज्ञान है तो उनको भी जानना चाहिए कि हर चीज़ जो प्राकृतिक रूप से है, जो भी है, वो एक दूसरे पर आश्रित है। Now appears something तो क्वांटम फिजिक्स के अनुसार भी कि चीज़ें जिनको हम देखते हैं तो उनको लगता है कि वो चीज़ स्वतंत्र रूप से होती हैं, लेकिन वास्तविकता यही होती है कि वो अपने अणुओं पर, परमाणुओं पर आश्रित है। they say nothing exists as appears. तो क्वांटम फिजिक्स के अनुसार भी कहते हैं कि जो भी चीज़ हम देखते हैं वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं होते हैं। Then things they are. तो जो देखने वाले अगर हैं Observer no longer there. तो तभी चीज़ें वो दिखाई देते हैं। अगर कोई देखने वाला ना हो तो वो चीज़ें कहाँ से होंगी। तो वो वही बातें हैं जैसे कि एक नालंदा परंपरा के जो चित्तमात्र विज्ञानवादी जो सिद्धांतवादी थे वो कहते हैं कि कोई भी चीज़ अपने स्वतंत्र अस्तित्व से नहीं होती है, वो हमारे चित्त के द्वारा एक प्रकार से निर्मित होती है। Say there is big
differences, appearance. और क्वांटम फिजिक्स के अनुसार कहा जाता है कि जो वास्तविकता और जो दिखाई देते हैं उसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है। Every sort of existence interdependent. तो हर चीज़, जो भी चीज़ आप देख रहे हैं वो आश्रित है, एक दूसरे पर निर्भर है। You see that philosophy or that view. तो इस प्रकार का जो दर्शन, इस प्रकार का जो सोच, वो वास्तव में बहुत ही लाभदायक है। Or emotion, destructive emotion. Destructive emotion very much based on appearances. When you appearance objectively exist. तो जब चीज़ों को आप देखते हैं कि वो अपने स्वभाव से सिद्ध है, Objectively sort of exist. So तो उनको आपको लगता है कि ठीक है, लेकिन उस तभी क्या होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा हमारा एक ग्राह्यता आ जाती है कि अच्छा है या बुरा है, और ये लगता है कि ये स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में है। independently. For that, one's even concept also the kasa concept kasa Interdependence. under Quantum physics. quantum physics, even quantum physics. तो क्वांटम फिजिक्स के अनुसार भी Nothing independent. भी कहते हैं कि कोई भी चीज़ें जिनको हम देख रहे हैं वो स्वतंत्र रूप से जैसे दिखती हैं वैसे नहीं हैं। Study तो कुछ जो कुछ छात्र हैं जो चाइना में in China. के कुछ छात्र ऐसे हुए हैं जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स पर शोध किया है, अध्ययन करते हैं। You see, they eventually they feel nothing तो independent. वो कहते हैं कि कोई भी चीज़ स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं होती है। So that reduce. तो इस प्रकार के अगर आपके अंदर ज्ञान जब आ जाता है तो हम अच्छे और बुरे एक प्रकार से बहुत ज़्यादा उसमें लगाव पैदा हो जाता है, तो वो लगाव कम होता है। Acharya Nagarjuna. तो आचार्य नागार्जुन ने इसके बारे में स्पष्ट रूप से कहा है Destructive emotion. कि जो भी हमारे नकारात्मक विचार हैं, Concept or belief things exist. तो वो तभी होती वो इसलिए आते हैं कि हम मान बैठे हैं कि चीज़ें स्वतंत्र सत्ता में होती हैं। Andi kan jodi kargo. 저기 다들 나양디 트레일러다 최디 대화를 영화했어요. 그리고 So, firstly, this kasoda uncontrollable, what's say, disease. When we तो अभी जो एक वैश्विक महामारी है जो बहुत ज़्यादा इससे हम लोग जूझ रहे हैं, जो पूरी जो दुनिया से जूझ रही है, तो जो भी डॉक्टर लोग और साइंटिस्ट लोग जो कह रहे हैं इसके बारे में हम सभी को उनकी बातों को मानना चाहिए और उसी हिसाब से चलना चाहिए। also difficult or already get something, then try to keep. और मान लीजिए कहीं अगर जो कोई इन्फेक्टेड हो जाता है तो उस समय भी तसल्ली में अपने मन को रखना चाहिए, आत्मबल रखना चाहिए। India's 1,000-year-old concept. तो भारत का जो हजारों वर्ष प्राचीन जो लोग परंपरा, जो आत्मा को मानने वाले परंपरा के लोग हैं, तो उस आत्मा को मानते हैं शरीर से हटकर के कोई आत्मा है। Atma. So, the end of life, just this physical, not being itself. तो आत्मा भी जो है स्वतंत्र, No beginning. तो इसका भी जो इसका लोग मानते हैं कि इसकी कोई शुरुआत नहीं होती है, ना ही आदि है ना अंत है। तो जो शरीर है वो एक कपड़े के समान होते हैं कि जैसे हम कपड़े जब पुराना हो जाता है उसी प्रकार से ये जो शरीर जब पुराना हो जाता है तो इसको छोड़ देते हैं Then dry. या फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, फिर भी आत्मा रहती है। ऐसे मानने वाले लोगों का ऐसा विचार रहता है। लेकिन बौद्ध धर्म के अनुसार, बौद्ध दर्शन के अनुसार वो कहते हैं कि ये जो हमारा जो चित्त और जो शरीर है, तो इसमें चित्त में भी बहुत सारे उसके स्तर होते हैं, उसके विज्ञान के अलग अलग क्षेत्र होते हैं, स्तर होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हर अपने जीवन में ही देखें कि जब हम स्वप्न देखते हैं उस समय मन की स्थिति अलग होती है, During sleep, और जब आप सो रहे होते हैं तो उस समय, और जब आप गहरी नींद में होते हैं तो उस समय अलग स्थिति होती है, और जब मृत्यु जब होती है तो उस समय अलग अलग जो स्थिति रहती है। function.
तो जो ब्रेन से जो हमारी जुड़ी हुई जो चित्त रहता है, हालांकि मृत्यु के समय नहीं रहता, लेकिन जो सूक्ष्म चित्त है वो फिर भी रह जाता है। तो वैज्ञानिकों के अनुसार चिकित्सीय क्षेत्र से के आधार पर तो वो मृत घोषित कर दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो लोगों में जो है सूक्ष्म चित्त रह जाता है। तो यही जो सूक्ष्म चित्त जो है सॉरी subtle level of mind, no beginning. तो जो सूक्ष्म चित्त की कोई शुरुआत और आदि और अंत नहीं होता है, तो बौद्ध धर्म के अनुसार ऐसे व्याख्या की जाती है। Logical, so any mind तो ये लॉजिकल बात है कि जो truly changing. कोई भी चित्त जो है वो हर क्षण परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता रहता है, Things are changing क्योंकि जो वस्तुएं या चीज़ें परिवर्तित होती रहती हैं। its own causes. तो क्योंकि ये उस पर आधार पर हेतु पर निर्भर होती, इसलिए बदलती हैं कि संस्कृत। तो इसमें दो प्रकार के जो हेतु होते हैं, एक तो मूल और इसको सहयोग करने वाले। Substantial cause, continuation of mind. तो जो मूल चित्त जो एक प्रकार के चित्त की संतति जिसको कह सकते हैं। I asked one occasion some doctor, तो एक अवसर पर मैंने कुछ डॉक्टरों से मैंने पूछा था what's the father's semen, mother's कि उनसे पूछा कि जो पिता का शुक्राणु और माँ का अंडाणु जब दोनों मिल जाते हैं, जब मिलते हैं, तो क्या जीवन की शुरुआत हो जाती है कि नहीं है? तो डॉक्टर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है। so then तो शुक्राणु और अंडाणु मिलने मात्र से जीवन की शुरुआत नहीं होती है। तो तीसरे एक फैक्टर की या हेतु की भी ज़रूरत रहती है। तो उसे ही for this body उदाहरण के रूप में ये जो शरीर और जो आप देख रहे हैं, तो माँ के अंडाणु और पिता के जो शुक्राणु इससे बना हुआ है, लेकिन फिर भी ये सिद्ध नहीं करता कि जीवन की शुरुआत हो चुकी होती है। तो इसलिए तीसरे फैक्टर या तीसरे कारक की आवश्यकता रहती है। तो इसलिए तो हमारी बौद्ध धर्म की परंपरा के अनुसार व्याख्या की गई है कि जो सूक्ष्म चित्त जब उसमें प्रवेश करता है, जब प्रतिसंध होती है, तभी जाकर के जीवन की शुरुआत होती है। karmic link also there. तो उसके साथ साथ जो हमारे कर्मों के कुछ लिंक वो भी साथ साथ जुड़े होते हैं। Then the subtle mind, as soon as subtle mind enter, then तो जैसे ही सूक्ष्म चित्त के जो चित्त प्रवेश होता है, संधि होती है, वैसे जीवन की प्रारंभ हो जाती है। तो चाहे अब सूक्ष्म चित्त को आप चाहे आत्मा कहें या जो कुछ भी कहता है, तो उसकी कोई शुरुआत जो अंत नहीं होता है और ना आदि होती है, वो लगातार चलती रहती है, संतति होती रहती है। तो बौद्ध धर्म के अनुसार चित्त संतति कहा जाता है। who remember about past life. तो इस आधार पर कुछ लोग अपने पूर्व जन्मों को याद रखते हैं, याद रखने में सक्षम हैं। You see, when very young, तो मैं भी अपना उदाहरण दूं 2-year-old, कि मेरी जब उम्र 2 वर्ष की थी, indication तो उस समय तो मैं अपने पूर्व जन्मों को याद रख पाता था, मुझे याद था। my sort of, the Tibetan government search party, तो मेरे जो तिब्बत गवर्नमेंट की जो सर्च पार्टी ढूंढने वाले जो लोग जब मेरे परिवार में गए, मेरे घर पर गए, कि मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, तो वहाँ जब पहुँचे तो उस दिन मेरी माँ ने कहा, सुबह से ही मेरी माँ ने कहा, तो मेरी माँ ने बताया कि मैं सुबह से ही कुछ ज़्यादा एक उत्सुक जैसा था। तो मेरी माँ को भी आश्चर्य हुआ कि छोटा बच्चा इतनी जल्दी क्यों उठ गया, इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों है, इतना ज़्यादा खुश क्यों है। some unknown तो फिर उसके बाद जो एक प्रकार से अपरिचित लोग जब मेरे पास आए, तो मैं उनके पास दौड़ करके गया और उनको मैंने पहचान लिया। कुछ लोगों को मैंने पहचान लिया। previous Dalai Lama, तो जो पूर्व के दलाई लामा के साथ उनके संबंध थे, मैं उनको पहचान लिया। remember about past life. तो इससे क्या है कि अपने पूर्व के जीवन को भी याद रख सकता था। Now, no longer लेकिन remember. जो एक सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, अब मुझे वो चीज़ें याद नहीं हैं। If you see, remember past life
and then a lot of problems also can remember. अगर पूर्व के बातों को याद करता हूँ तो बहुत सारी समस्याएं भी याद आ जाएंगी, तो अच्छा ही है। नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। Young Tibetan, even if some तो कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चे भी हैं, कुछ विदेशी भी हैं जो Indian, और इंडियन भी हैं। तो उन लोगों से मैं मिला हूँ, एक बच्चे से मिला हूँ, एक लड़के से मिला, लड़की से मिला। very clearly, तो वो अपने पूर्व जन्म के जीवन को स्पष्ट रूप से याद कर सकते हैं, उनको याद है। like where they remain, the family. तो उनको ये भी याद है कि परिवार का नाम क्या था, कहाँ रहे हैं, पूर्वजों के नाम क्या हैं। I met actually तो मैं उन लोगों से मिला हूँ। like that. So therefore, there is something can remember. तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि याद रखी जा सकती हैं, लोगों को याद भी रहती हैं। One Tibetan boy, when he was very young in Tibet, correct. Oh, Kimilo. He remember, you see, in Tibet, he say, this is not my place. तो एक बच्चे की कहानी है तो कि उन्होंने तिब्बत में जन्म लिया, कहा कि तो जन्म लेने के बाद कहा कि मेरा ये जगह नहीं है, मेरा जन्म तो Insist. तो मेरा घर तो या जगह तो भारत में है। The parent, तो फिर उसके बाद बच्चों को लेकर के उनके माँ बाप यहाँ आए, not my place. तो उन्होंने फिर बच्चे ने कहा नहीं, ये भी मेरा जगह नहीं है। तो बच्चे ने कहा कि ज़बरदस्ती की कि दक्षिण भारत में जाना है। फिर उसके बाद बच्चे को दक्षिण भारत ले गए, जो मठ हैं वहाँ पर लेकर के गए। That boy तो उसके बाद pointing, तो उस बच्चे ने इंगित करके कहा, एक बड़ा जो मठ है गांधीन मोनेस्ट्री, कहा कि ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, मेरा स्थान है। young boy, फिर बच्चे को लेकर के, जो छोटा सा बच्चा था, वो बच्चा खुद अपने माँ बाप के हाथ पकड़ करके उस बिहार में ले गए और वो एक कमरे में ले गए जहाँ पर वो रहते थे। my room. तो उसका ये मेरा कमरा था, यहाँ मैं रहता था। Quite strange. He mentioned, तो उसके बाद वो एक प्रकार की और अजीब सी घटना हुई। the table. तो जो मेज थी, See, he mentioned my glass तो deck. कहा कि जो मेरी जो मेज है, जो मेज का जो ड्रॉ, तो उसमें कहा कि चश्मा मेरा यहाँ रखा है। There. तो पूर्व जन्म का जो चश्मा वहाँ पर रखा मिला। Strange things. तो ये कुछ अजीब सी घटनाएं होती हैं। Fortunately, now that boy, he studied in South India. तो जो बालक है अभी भी वहाँ पर पढ़ाई कर रहा है। एक समय यहाँ पर आया, About 10. तो उस समय उसकी उम्र कोई 10 वर्ष की। तो मैं पूछा कि तुमको याद है, अपने पूर्वजन्म की बातें याद हैं? तो कहा नहीं। तो उसके बाद मैंने भी कहा कि मैंने कहा कि अच्छी बात हुई कि मेरा भी एक साथी मिल गया जिसको पूर्वजन्म की याद नहीं है, पूर्वजन्म की जीवन की बात याद नहीं है। Then now getting older, तो आप जैसे remember your past life. तो जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो पूर्व जन्म को याद नहीं रख पाते हैं। तो मेरा एक मित्र की तरह से मिल गया। This life after life, तो इस प्रकार के जो जीवन दर जीवन चलने की जो प्रक्रिया है, according Indian, according Hindu, believe Atma. तो हिंदू परंपरा के अनुसार आत्मा को मानते हैं और बौद्ध धर्म के अनुसार आत्मा को नहीं मानते हैं। Subtle level of mind. लेकिन बौद्ध धर्म के अनुसार चित्त की संतति होती है, सूक्ष्म चित्त रहता है। Concept also you see useful. तो ये जो सिद्धांत है, ये वाकई एक प्रकार से लाभदायक है और इससे एक उम्मीद जगती है। Will be happy life. And through lives, और इस उम्मीद के साथ साथ हम अपने जीवन को खुशहाल रूप से जी सकते हैं you see improving. और जीवन दर जीवन हमारे एक प्रकार से एक सुधार होता है। The difficult subject, तो कुछ में अपना उदाहरण देखें कि कुछ जो जटिल विषय हैं वो बहुत कठिन लगते हैं, जो बहुत सरल लगते हैं। my previous तो life, इससे सिद्ध होता है कि शायद पूर्व के जीवन में इस विषय को मैंने अच्छी तरह से पढ़ा होगा। consider this subject very तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि विषय तो बहुत कठिन है, तो मेरे लिए तो वो विषय ज़्यादा कठिन नहीं होता है। तो इसके लिए शायद ये कारण हो सकते हैं, ये वजह होगी। previous life, familiar. तो मेरे पूर्व जन्म में मैं इस ग्रंथ के प्रति, इस विषय के प्रति मैं शायद जागरूक था, इसके प्रति परिचित था, इस वजह से नहीं होता। Your Holiness, may I now invite Dr. Pratap C. Reddy, founder chairman of Apollo Hospitals Group. तो मैं प्रताप रेड्डी को मैं बुलाना चाहता हूँ, जो अपोलो
स्कूल अपोलो अस्पताल से हैं। Your Holiness, my namaskars, and it has been such a pleasure hearing you talk about the mind and the तो heart. परम पावन जी, आपके चित्त, मन, हृदय, इसके बारे में, आत्मा, पूर्व जन्म, इसके बारे में आपकी बात सुन कर के Every time we hear you, बहुत ही खुशी हुई। but the entire physicians of the world, today you have given a message about this terrible pandemic. तो आज आपने जो कोरोना के समय में किस प्रकार से इससे बचा जा सके, विश्व के लोग कैसे इससे पीड़ित हैं, तो आपने इसके बारे में व्याख्या की। When the medical community was getting ready to face another major health crisis called the NCDs, none of the diabetes, the heart attacks, the stroke, cancer. So this has come on so suddenly and created this huge panic in people. तो हालांकि हम लोग इसमें जितने ज़्यादा लोग तैयार भी नहीं थे, मेडिकल क्षेत्र में ये चीज़ें अचानक घटित हुई, तो इसलिए आपने डॉक्टर, नर्सेस को आपने धन्यवाद दिया है। And we are indebted to you for your blessings that all will. तो इसलिए हम लोग आपकी प्रार्थना, आपके आशीर्वाद के चाहते हैं कि ऐसे समय में आशीर्वाद बने रहें और हम लोग भी इस मेडिकल क्षेत्र में तरक्की कर सकें। Bring us. Still, we don't know what medicine is going to act, what vaccine will act. तो क्या वैक्सीन आए, क्या हम लोग कर सकें, Act towards that. तो इससे वैक्सीन किस प्रकार से काम कर सकेगी और शायद इस जो समस्या इससे, इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। The whole world literally is paralyzed. तो अगर देखा जाए तो पूरा दुनिया एक प्रकार से पैरालाइज की तरह हो गया है। Is right in the street. लोग अपने घर पे बैठे हुए हैं, ज़्यादा कुछ कर नहीं सक रहे हैं। I think such a things you have given us. तो आपके जो संवाद हैं तो निश्चित रूप से लोगों को लाभ मिलेगा और आशीर्वाद भी काम करेगा Humanity. और मानव जगत है उनको फ़ायदा होगा। We as doctors will convey to our patients to have that confidence that things. और लोगों में भी आत्मविश्वास पैदा होगा। Again and again I can say, Your Holiness, it is such a wonderful thing listening to you and the तो way परम you पावन जी, express it, आपको सुनकर बहुत ही लगा और ख़ास करके generation. कि आपने जैसे व्याख्या की और अंत में कि कैसे बच्चे पूर्वजनों को याद रख सकते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे सुधार हो सकता है। Will not. Sometimes if we do very well, we remember it. If you can't do it well, we'll remember you again. तो निश्चित रूप से जो आपने कहा कि जिसको आप कर सकते हैं, जो आपकी सलाह है, Thank you. तो उस सलाह को हम लोग मानेंगे। तो इसलिए परम पावन जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सभी लोग आपके आभारी हैं Prayers for the world citizens to get over this COVID crisis. और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो कोरोना नामक बीमारी से हम लोग निजात पाएंगे। Pandemic that is there, that is a non-communicable disease. Because they say by end of this decade, 80% of the deaths will be from those 5 diseases. And तो कहते हैं कि इस भविष्य में आने वाले समय में जो मृत्यु होगी तो वो 80% जो मौतें हैं वो इस प्रकार की चीज़ों से ही मौतें होंगी। we need your guidance, your help and your prayers so that तो इस प्रकार का जो समय, जो एक जटिल समय आने वाला है, our duty with a confident saying there is blessings behind us and we will do our तो इसलिए परम पावन जी आप अपना आशीर्वाद हम लोगों पर रखें। धन्यवाद। many words, but I think all of us are so happy. Many physicians from across the world. तो बहुत सारे जो डॉक्टर्स लोगों ने आपके संवाद को सुना, सारे लोग खुश हैं। Heard this and your words of comfort and hope will be of great value to us. Thank you. Grateful to you, Holiness. Tuche Nang, Your Holiness, thank you very much. Thank you. Now these days, I always sort of express or insist. तो आज समय मैं अक्सर यही कहता हूँ कि जो प्राचीन भारतीय विद्या है, जो हमारे जो मनोविज्ञान, खासकर मनोविज्ञान के जो विषय हैं, I think very useful और बहुत ही ऐसे समय में लाभदायक हैं, बहुत ही, among the human being. और जो मनुष्य जाते हैं, जिसके भी अंदर ये सोच विचार करने की क्षमता है, वो अपने As I briefly mentioned
the very nature of our destructive emotion. और जो हमारे Destructive emotion based on ignorance. और जो भी हमारे अंदर विचार आते हैं या कलुषित विचार आते हैं अविद्या की वजह से हैं। So there is real hope. और लेकिन फिर भी शिक्षा के द्वारा एक उम्मीद है, विद्या के द्वारा हम अपने चित्त को प्रशिक्षित कर सकते हैं, हम करुणा को पैदा कर सकते हैं, मैत्री को पैदा कर सकते हैं, ये जो सकारात्मक भावनाएं हैं उनको पैदा कर सकते हैं। तो इनके कारण हैं, वजह है, इसको हम उत्पाद कर सकते हैं। और जैसे कि नकारात्मक विचार जैसे कि क्रोध है, डर है, तो इनको अगर आप परीक्षण करोगे तो इनके कोई सार नहीं मिलता है। और ये सारी चीज़ें केवल और केवल भावनाएं हैं और ये अविद्या पर आधारित हैं, अज्ञानता पर आधारित हैं। और ये जो सकारात्मक विचार है हमारी उम्मीद है। तो जितने भी विचार हों, चाहे जो नकारात्मक हों सकारात्मक हों, वो हमारे जो मन या चित्त उसके भाग होते हैं। और जो नकारात्मक होने का कोई आधार नहीं होता है, सकारात्मक विचारों का एक आधार होता है। तो इसलिए जो प्राचीन भारतीय जो मनोविज्ञान है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए और इसके द्वारा अपने मन को बदल सकते हैं, अपने चित्त को बदल सकते हैं। Just this morning, I always talk some Indian police. तो मैं आज सुबह भी कुछ पुलिस से बात कर रहा था। You Indian. तो मैंने उनसे कहा कि आप जो भारतीय लोग हैं, आप लोग हमारे गुरु हैं, हम लोग चेला हैं। Now modern India. लेकिन आधुनिक समय में Seems chela. जो चेला हैं ऐसा लग रहा है कि गुरु बन गए हैं और जो हमारे परंपरागत गुरु हुआ करते वो चेला बन गए। So now, my point is, modern India should pay more. तो इस मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो आधुनिक समय के आधुनिक भारतीयों को भी प्राचीन जो आपकी विद्या है उसको भी ध्यान देना चाहिए और जो वर्तमान की आधुनिक जो शिक्षा है वो प्राचीन शिक्षा दोनों को जोड़ना चाहिए। तो ये जो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से लाभदायक हो सके। आधुनिक शिक्षा से तो हमारे शरीर की परिपूर्ति उसके लाभ हो सकते हैं, वो प्राचीन विद्या के द्वारा हमारी मानसिक सुख या मानसिक स्वास्थ्य कैसे बने। तो ये भारत की प्राचीन हजारों वर्ष प्राचीन परंपरा जो कि धर्मनिरपेक्ष की परंपरा उसके रूप में हमें देखना चाहिए। तो ये आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आप भारतीय मित्रों को मैं ये बताना चाहता हूँ। तो आपको अपने अध्ययन के दौरान अध्ययन करना चाहिए कि और एक गुरु की तरह रहना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो आपका धन्यवाद।